nation. It has touched every aspect of life. It is used to communicate cross instant message and email to banking, traveling, studying, shopping, and so on. With the growing use of internet by people, protecting important information has become vital. Number of infected web pages and malicious websites can be seen every day. That in fact the computer and allow the hacker to gain illegal access to other computer system. Hacking of important data, network outage, computer virus, and other cyber-related threats affected our life that range from minor inconvenience of serious incidents. Actually, we have not so much time. Many speakers have to deliver their speech on this related topic. So with a hug round of applause, may I please call upon Prashant sir and request him to speak a few words about this experience on this topic. Thank you. Prashant sir, request him to speak a few words about his experience on this topic. Thank you, Rajesh ji. So Rajesh ji, I am starting. Yes, Prashant sir, continue. Okay, good. Thank you. So, hello everyone. Professor Mehta, Faculty Coordinator Mr. Rajesh Ranjan, and Mr. Shiv Ram Krishna ji, and dear student. On behalf of Team Hypex, I, Prashant Singh, along with my colleague Rahul and Vivek, would like to take this opportunity to thank and congratulate you all for providing such a noble and great webinar to address this budding young talent. So there is a big gap. Please open your camera. So there is a big gap between industry and academia. So connect these dots. This is the outline today we are going to present. So first I am going to tell about ourselves, then a field known as AIML, that is going to addressed by Rahul sir, and then cyber security is going to be taken care by Vivek sir, and then finally few words for cryptography if time remains. Then afterwards, Prashant sir, yes. It is better to speak in Hindi. Yeah, sir. Please, sir. Speak in Hindi, if possible. Yeah, sir. Okay. I will try to speak in Hindi, not completely, but okay. So after that, Sanjeev sir will take over for the Hypex part about the opportunities for Polytechnic students and the courses which are going to be offered by the Hypex. Okay. So as you all aware that on daily basis we are contributing a lot of data to this digital world, and this data is traveling from one end to other end of the world and going to reside somewhere in server, stored in somewhere in server. So these servers may be databases form or in file system form. So मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि data is we are generating on daily basis through our social media or some research publication or some mail transfer or some image transfer. Anyway, we are contributing in generation of lot new data as well as old data. So this lot of data is traveling from one end to other end through the internet and going to sit somewhere in the servers, in the cloud. So these servers either in database form or in file system form. Now, data is used for the application. Hello, yes? Yeah. Yeah, hi Prashant. Sorry to interrupt you, but as you know, the topic is simple for us.
and number of person is still commenting. Okay. So I will try to speak in Hindi. Okay. Good. So जो ये डेटा है, जो इंफॉर्मेशन हम लोगों के थ्रू जनरेट होती है, वो ट्रेवल करती है एक एंड से दूसरे एंड को, और वेरियस एप्लीकेशंस इसको यूज करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पर्पस में, बिग डेटा में, और भी बहुत ई कॉमर्स साइट्स में इस डेटा का यूज होता है. सो अभी विदाउट डेटा यू कैन नॉट ट्रेन अ मॉडल. आप मशीन लर्निंग वाले मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकते अगर आपके पास सफिशिएंट वैलिड डेटा नहीं है. एंड डेटा जो है सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है आज की डेट में, जो हम लोग जनरेट करते हैं. आपको वाटर के बारे में पता है, पानी के बारे में पता है, उसका 3 स्टेट होता है. आपका सॉलिड होता है, गैस के फॉर्म में होता है, और लिक्विड होता है. इन तीनों स्टेट की जैसे डेटा भी होता है. आपका डेटा एट रेस्ट, जब आपके हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है स्टोरेज फॉर्म में, या डेटा इन ट्रेवल, जब आपके मोबाइल से निकलते हो या क्लाइंट डिवाइस से निकलते हुए सर्वर की तरफ ट्रेवल करता है राउटर्स के थ्रू. या तीसरा डेटा इन यूज, जब हम उस डेटा को यूज कर रहे होते हैं, तो डेटा हमेशा 3 स्टेट्स में रहता है. सो ज्यादातर आज के समय में ये डेटा प्रोसेसिंग का काम क्लाउड को डिवोट किया गया है. क्यों? क्योंकि इससे जो आज की जो कंपनीज है, इनका बर्डन काफी कम हो गया है. क्योंकि अर्लियर सर्वर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी, अभी आप सारा कुछ क्लाउड को डिवोट करते हो, और जो कॉस्ट है और कन्वीनियंस दोनों कम हो गए हैं. लाइक आपका अमेजन का क्लाउड है S3, गूगल क्लाउड है, एज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, ऐसे ही वेरियस क्लाउड सोर्सेज है. या आपका फाइल सिस्टम के क्लाउड्स हैं, जैसे आपका ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव आप डे टू डे लाइफ में यूज ही करते हो. सो इन ऑल 3 फॉर्म्स जो हैकर है वो इन किसी भी स्टेट में आपके डेटा को हैक करने की कोशिश करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश करता है. वो कैसे करता है? क्योंकि जो सिस्टम हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, आई डोंट नो हाउ टू से दिस वर्ड इन हिंदी, इट इज कॉल्ड vulnerabilities. So there are a lot of vulnerabilities in our system. तो उन कमियों को फायदा उठाते हुए ये जो हैकर्स होते हैं उसको यूज करते हैं और आपके सिस्टम में घुसते हैं. इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास जो पासवर्ड और यूजर नेम है उनका साइज लिमिटेड है. और लिमिटेड साइज क्या है कि अगर आप 10 कैरेक्टर से 20 कैरेक्टर का ही पासवर्ड या आईडी रखते हो और उसको याद करना 1 मिनट probably try to read that. आप लोग प्रशांत के पीपीटी शेयर्ड है, आप लोग प्रशांत सर का जो सर का उसको क्लिक कर दीजिए तो आप लोग के स्क्रीन पे दिखेगा. आई थिंक So, okay. I just reshared. Please check. अब दिख रहा है सबको? हाँ जी सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है. दिख रहा. ओके. अपने माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज. जिनको रिक्वायर्ड नहीं वो अपना माइक म्यूट कर दीजिए. जब कोई क्वेश्चन पूछना होगा तब अपना माइक ऑन करिएगा. आपके क्वेश्चन आंसर के लिए आप माइक ऑन कर सकते हैं, वैसे आप अपना माइक ऑन ऑफ रखिए. सो आज के समय में सबसे बड़े चैलेंजेस जो इंडस्ट्री के लिए है वो 2 है. एक रैंसमवेयर है, दूसरा है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. सो रैंसमवेयर में क्या होता है कि आपका जो रूट होता है आपकी डायरेक्टरी का सर्वर पे, जो आप अपना सिस्टम का सर्वर
सर को क्यों म्यूट कर दिया? हेलो सर आउट हो गया और सर पिक्चर भी नहीं आ रहा। हेलो हेलो प्रशांत सर, यस यस हाँ प्लीज सर। हाँ ओके सो वेट so Ritesh Kumar is presenting. That is the problem. Someone is presenting. रितेश प्लीज आप हेलो राजेश सर प्लीज। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कोई भी ज्वाइन कर रहा है तो एज अ प्रेजेंटेटर ज्वाइन कर रहा है, जिसकी वजह से आपका प्रेजेंटेशन क्लोज हो जा रहा है। प्लीज आप अपने स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करो कि एज अ प्रेजेंटेटर ज्वाइन ना करें। रितेश कुमार जब गूगल मीट ज्वाइन करे तो पूछता है कि सिंपल मीटिंग ज्वाइन करनी है या प्रेजेंट करनी है, तो ज्वाइन करिए, प्रेजेंट मत करिए। ठीक है प्रशांत सर, ज्वाइन करिए। ओके सो प्रेजेंट आप लोग नहीं कीजिएगा और आई होप माय स्क्रीन यस प्रशांत सर, चलिए कंटिन्यू करिए। विजिबल ओके टाइम में बहुत से अटैक्स हुए हैं रिसेंटली। जो इस ईयर का एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो डैमेज हुआ है इंडस्ट्री को, वो $6 ट्रिलियन का है। और अभी आप जूम के बारे में जानते हैं, जूम इसीलिए डाउन हुआ, आपका मीट से मीटिंग हो रहा है क्योंकि उसमें इंक्रिप्शन नहीं था और लोगों ने इसका डेटा चुराया। याहू की हिस्ट्री आपको पता ही है, क्योंकि याहू एक टाइम पे सबसे ऊपर था मेल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, बट उनका यूजर डेटाबेस जो है वो हैक किया गया और उसको सेल के लिए रखा गया। इसकी वजह से वो डाउन हुए और गूगल की सिक्योरिटी बेटर थी और उस वक्त वो अपॉर्चुनिटी इसको मिली और गूगल आज इस लेवल तक पहुंचा। आपको अभी और रिसेंट चीजें आपको याद होंगी कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और सेलिब्रिटीज की फोटोज को जो न्यूड फॉर्म में थी उनको पब्लिक डोमेन में लोगों ने रख दिया और क्रेडिट कार्ड डेटा को भी सेल किया है। तो ये बहुत से चैलेंजेस हैं जिसको एड्रेस करने के लिए आज हम लोग डेटा का यूज क्या है, इंफॉर्मेशन का AIML कैसे हमें असिस्ट करता है और साथ साथ हम इसको कैसे कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी, इन दोनों एस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। और इसको बताने के लिए अभी मैं राहुल सर को इनवाइट करता हूं जो AIML ट्रैक को आपको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोगों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा एकेडमिक प्लस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है अराउंड 12 ईयर का। I was a best faculty for twice in a reputed institute at Lucknow. Then I joined as a research engineer at Bangalore. मेरा रिसर्च एरिया जो है, अभी तक हमने 6 पेटेंट और 5 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस किए हैं। उनमें से एक बेस्ट पेपर अवार्ड भी उसमें मिला है। देन राहुल सर का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अभी वो इस वक्त स्पीच पे काम कर रहे हैं, AIML की एक प्रॉब्लम जिसमें स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन होता है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन। और पहले उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है, हमारे साथ वो IISc बैंगलोर में थे और इनका 34th रैंक रहा है गेट में। करंटली इज अ डेटा साइंटिस्ट एट जियो। आप जियो का नाम आपने सुना होगा क्योंकि हम लोग जियो का फोन यूज करते हैं। विवेक सर बॉर्न प्रोग्रामर है, पैदाइशी प्रोग्रामर इनको बोल सकते हो। जब से मैंने इनको देखा है, करंटली इज ए स्टाफ इंजीनियर एट सीगेट टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर में उनके ड्राइवर्स लिखना, विंडोज या लाइनेक्स के चिप लेवल की जो प्रोग्रामिंग करना, ये सारा विवेक सर का एरिया है और इसमें ये एक्सपर्ट है। सो ही विल टेल अबाउट मोर इन डिटेल वंस हिज टर्न कम। तो अभी क्या है, मैं इनवाइट करता हूं राहुल सर को, वो अपना स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन। राहुल सर। या हाय स्टूडेंट्स,
सो AI एंड ML, सो आप लोगों ने बहुत सारे टर्म सुने होंगे, जैसे कि एक AI हो गया, एक मशीन लर्निंग हो गया ML, और एक डीप लर्निंग हो गया DL। सो ये तीन सब्जेक्ट्स एक्चुअल में एकदम अलग अलग नहीं है, ये आपस में काफी हद तक रिलेटेड है। तो पहले मैं वो स्टार्ट करूंगा, आप लोग को बताऊंगा कि कैसे ये लोग रिलेटेड हैं, और फिर इनके बारे में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सो नेक्स्ट, या सो AI क्या है? तो साइंस ऑफ इंजीनियरिंग, तो साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन। सो बेसिकली कंप्यूटर को ऐसा प्रोग्राम करना कि कंप्यूटर वो डिसीजन ले जैसे कि ह्यूमंस लोग डिसीजन लेते हैं, और थोड़े इंटेलिजेंटली डिसीजन ले। ऐसा नहीं कि हर बार एक ही जैसा काम कर रहा है कोड। जैसे बारिश हो रही है तो भी सोलर पैनल इस डायरेक्शन में है, या सूरज अगर पूरब में है तो भी आपका सोलर पैनल पश्चिम में दिखा रहा है, जब पश्चिम में तब भी पश्चिम दिखा रहा है, तो स्टैटिक हो गया। इंटेलिजेंटली डिसाइड कर सके मशीन कि सोलर पैनल का क्या एंगल होना चाहिए जिससे कि सन की रेज मैक्सिमम पड़े, या फिर सिंपल डिसीजन। तो कोई भी ऐसा डिसीजन जो डिपेंड ऑन सिचुएशन चेंज कर सके। राहुल सर, we lost you. Yeah. Hello. अजय कुमार ने म्यूट कर दिया राहुल सर को। अच्छा, मैं म्यूट कहाँ तक सुना? या सोलर पैनल्स का समझ दिया उसके आगे। अच्छा ठीक है, तो फिर से किसने राहुल सर को म्यूट किया है? वो एक्चुअली एवरीवन को म्यूट कर रहे हैं ना, तो एवरीवन म्यूट हो रहे तो मैं भी म्यूट। सर प्लीज अजय कुमार कौन है, प्लीज म्यूट मत करे राहुल सर को। राहुल सर, गो अहेड। प्रशांत एक बार फिर से प्रेजेंटेशन करो। प्रेजेंटेशन राजेश कुमार ने ले लिया। ओके। यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए प्रशांत सर। हाँ, दैट्स आई एम डूइंग। हाँ, तो मैं कह रहा था कि डिपेंड ऑन मशीन, हर बार आपका कंप्यूटर अलग अलग डिसीजन ले रहा है बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं उनको हम इंटेलिजेंट बिहेवियर बोलते हैं। और कोई भी प्रोग्राम या एल्गोरिथम या मशीन जो ये काम कर रही है वो AI के अंडर में आएगी। तो नेक्स्ट, हाँ, सो AI में हम क्या करते हैं? बेसिकली कंप्यूटर साइंस की आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, कुछ OS से डील करती हैं, कुछ हार्डवेयर से डील करती हैं। सो ये ऐसी ब्रांच है जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर से डील करती है। तो जो भी आपके प्रोग्राम या कंप्यूटर या बॉट्स, मोबाइल फोन जो भी इंटेलिजेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं वो सब का सब AI के अंडर में आएगा। ठीक है, इसमें कुछ सिंपल बिहेवियर भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आप बताया सोलर पैनल एंगल के हिसाब से चेंज हो जाए, या फिर आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, वो ऐसे सिंपल काम भी हो जाएंगे AI के अंडर में। या फिर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड काम जैसे कि डिटेक्ट करना है कि आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, आप चाह रहे हैं कि आपने स्कैन किया मोबाइल से और उसने बता दिया कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, मतलब ये बिस्कुट है कि क्या है ये, और आपका ऐसे कैमरे से बता दिया। या फिर जो आप बोल रहे हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके, इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दिया, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी और एकदम सिंपल टास्क भी AI के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट, प्रशांत सर नेक्स्ट। या सो अब हम बात करेंगे मशीन लर्निंग की। सो मशीन लर्निंग बेसिकली और ML ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जो AI है वो कोई भी इंटेलिजेंट बिहेवियर हो सकता है। वो इंटेलिजेंट बिहेवियर आपका रूल बेस्ड भी हो सकता है। सपोज करिए आपने हर चीज के रूल बना दिए कि अगर बारिश है तो ये है, बादल निकला है तो ये करे, ये है नहीं तो ये करे। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन आपका जो प्रोग्राम होगा वो डिफरेंट काम करेगा। लेकिन आपने क्या कर दिया, सब कुछ हार्ड कोड कर दिया, मतलब कि आपने सारी सिचुएशन बता दी, सारे रूल्स बता दिए कि जब ऐसा हो ऐसा हो। तो स्टार्टिंग में जब AI फील्ड आया था तो लोग के प्रोग्राम होते थे AI के, वो ऐसे ही बने होते थे। जैसे कि एक बहुत बड़ा फेमस प्रोग्राम था डॉक्टर्स के लिए, वो लोग डॉक्टर्स में सिम्टम्स फीड करते थे कि अगर ये है, तो AI वाली एल्गोरिथम क्या करती थी कि अच्छा अगर उसमें पहले से सब कोड रहता था कि अच्छा अगर जुकाम है और इतने दिन से ये हुआ है और खाने में ऐसा लग रहा है तो उसका मतलब ये चांस है, ये सिम्टम है तो ये बीमारी है, ये सिम्टम है तो ये बीमारी है, इस तरह के सब रूल। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी, सारे के सारे आपको रूल पता होने चाहिए, तभी आप रूल बेस बना पाएंगे सिस्टम।
तो फिर क्या आई, मशीन लर्निंग आई। मशीन लर्निंग में क्या है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो होते हैं, हमारे मशीन लर्निंग प्रोग्राम जो होते हैं, वो अपने आप लर्न कर सकते हैं डेटा से। जैसे कि आपको सपोज करिए, मतलब अगर हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं डॉक्टर्स का, तो आप बस ये बताएंगे कि इस पेशेंट को ये सिम्टम था और ये बीमारी निकली, ये सिम्टम था ये बीमारी निकली। आप कोई रूल नहीं बताओगे और बस इस तरह का डेटा फीड करते रहोगे। वो प्रोग्राम अपने आप लर्न कर लेगा कि अच्छा ये सिम्टम होते हैं तो ये बीमारी होती है, ये सिम्टम होते हैं तो ये बीमारी होती है। तो एमएल का फायदा क्या हुआ कि हमको रूल नहीं बनाने पड़ रहे हैं, हमको बस डेटा देना पड़ रहा है। ठीक है, डेटा कुछ भी हो सकता है, पास्ट ह्यूमन बिहेवियर अगर ह्यूमन रिलेटेड है, या स्टॉक का प्राइस हो गया। सपोज करिए आप स्टॉक में प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कल को शेयर कितना अप जाएगा डाउन जाएगा, तो मैंने पिछली हिस्ट्री दे दी, एल्गोरिथम अपने आप रिकैलकुलेट करेगा कि अच्छा ये पैटर्न होता है, या आज संडे है संडे के दिन गिरता है, या आज मंडे है मंडे के दिन बढ़ता है, या लास्ट ईयर होली में बढ़ा था तो इस साल भी बढ़ेगा। इस तरह की चीजें इट कैन डू, अगर आप डेटा दें उसको बिग एनफ तो प्रिडिक्ट कर सकता है कुछ बिहेवियर। वेट प्रशांत सर, सत्यम रानी ने प्रेजेंटेशन अपने, प्रशांत फिर से प्रेजेंट करो, किसी ने प्रेजेंटेशन ले लिया है। Please guys, join as a joinee, not as a presenter. Yeah. So हाँ, तो कोई भी ऐसा ले सकता है। तो जो ऐसे होते हैं जो मॉडिफाई कर सकते हैं, जो रूल बेस्ड थे वो मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। जैसे कि अगर आपने कभी गेम वगैरह खेले होंगे तो उसमें कंप्यूटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना होता है, तो उसका जो एल्गोरिथम है वो हमेशा वैसे ही रहेगा। वो डिपेंड देखेगा कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, उसी से ही जाएगा। या बेसिक ऑन जो रूल, वो ह्यूमंस को देख देख के मॉडिफाई नहीं कर सकता अपना बिहेवियर कि अच्छा ह्यूमंस ऐसे जाते हैं तो हम भी ऐसे ही जाते हैं। तो ये एक लिमिटेशन थी जो कि मशीन लर्निंग ने सॉल्व कर दी। और जैसे जैसे डेटा आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका एल्गोरिथम भी इम्प्रूव होता जाएगा। जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस, उतना अच्छा एल्गोरिथम होगा। और इसके लिए एक ड्रॉबैक था कि आपको ये बताना पड़ेगा, इसमें फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं चीज को। फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है, सपोज करो आपको ये बताना है कि आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि शेयर अप जाएगा कि डाउन जाएगा, तो आपको कुछ डेटा देना पड़ेगा। जो आप डेटा दे रहे हैं उस डेटा को आपको फॉर्मेटिंग करके फीचर्स निकालनी पड़ेंगी। जैसे कि ये कौन सा शेयर है, किस कंपनी का है, कितने पे बेचा था, कितने पे खरीदा था, हफ्ते में कितना ऊपर जाता है, हफ्ते में कितना नीचे जाता है, इस तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेशन देने पड़ेंगे। प्रशांत वेट, राहुल वेट, प्लीज गाइस म्यूट योरसेल्फ। हाँ ठीक है, हाँ तो इस तरह की फीचर्स देनी पड़ती है हमको। तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम थी मशीन लर्निंग में, और काफी अच्छा भले ही वो कर भी ले। प्रशांत रीशेयर कर देना। प्रशांत रीशेयर, 1 मिनट आप कंटिन्यू रखिए सर। 1 मिनट सर, आप लोग बार बार प्रेजेंटिंग क्यों कर रहे हैं भाई? राहुल, क्या दिक्कत है? आप सिर्फ अपना मोबाइल या लैपटॉप या जिसमें ये रख दीजिए, सुनते रहिए। बार बार प्रेजेंटिंग करते हैं तो स्पीकर बोलने में दिक्कत हो रहा है। जो एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो अगर कोई प्रेजेंटिंग आ रहा है तो एक्सेप्ट ही ना करे रिक्वेस्ट, वो सिर्फ उन्हीं का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे जो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये भी एक चीज कर सकते हैं। हाँ तो हाँ तो ये एक ड्रॉबैक था कि हम लोग को काफी बताना पड़ता था एमएल एल्गोरिथम को। और एमएल एल्गोरिथम कुछ चीज में अच्छे होते हैं, जैसे कि आपका ईमेल में स्पैम डिटेक्ट करना है, जो कि डेटा ड्रिवन होते हैं एकदम। लेकिन जो ह्यूमन टास्क होते हैं उनमें उतने अच्छे नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना या स्पीच सुन के बता देना कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, वो सब काम अच्छे नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट, तो उसके लिए एक नई फील्ड आई जो कि इसी की मशीन लर्निंग की ही सब फील्ड है। तो मशीन लर्निंग कैसे काम करता है पहले ये बताता हूं मैं। मशीन लर्निंग में जो एल्गोरिथम है वो कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको क्या मिनिमाइज करना है आपको। जैसे कि अगर हम स्टॉक
मार्केट स्टॉक ट्रेडिंग देखें तो हम क्या मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? हम अपना नुकसान मिनिमाइज करना चाहते हैं और अपना फायदा मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो एल्गोरिदम को हम ऐसा ही डेटा देते हैं। या फिर सपोज करिए आपको आपका जो एल्गोरिदम है वो इस चीज पे है कि जो ईमेल आ रहे हैं, स्पैम आ रहे हैं या वायरस वाले जो ईमेल आते हैं, आप उनको छांटना चाहते हैं। राजेश जी प्लीज आप बच्चों से अब इतने ही बच्चे रहने दीजिए, अगर बार बार इंटरप्ट होने से प्रॉब्लम हो रही है। प्रशांत सर अभी स्क्रीन शेयर करेंगे एंड देन राहुल सर कंटिन्यू करेंगे। अब इतने ही बच्चे रहने दीजिए, बार बार बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। से बाकी बच्चों को भी दिखना बंद हो जा रहा है एक्चुअली। हाँ, तो इसमें हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने का ट्राई करते हैं, डिपेंड अपॉन हमें करना क्या है। जैसे कि आपका ईमेल हो गया और हमको चाहिए कि वायरस वाले जो ईमेल आते हैं लोगों के पास, स्पैम वाले जो आते हैं वो सब ना आए। तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को पहले हम डेटा कलेक्ट करके फीड करेंगे कि जो इस तरह के ईमेल होते हैं वो स्पैम होते हैं। तो जो हमारा डेटा हो गया, जैसे ईमेल के अंदर का टेक्स्ट हो गया, ये सब डेटा हो गया, या ईमेल आईडी जहां से आ रहा है, क्या पता एक ईमेल आईडी हो जिससे हमेशा ही स्पैम आता हो, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं फीचर्स। मतलब क्या क्या हो गए फीचर, ये इनपुट हो गए आपके कि ईमेल का टेक्स्ट क्या है, ईमेल में इमेज है कि नहीं है, इमेज किस ईमेल आईडी से आ रहा है, इमेज हमेशा ईमेल रात में आता है या दिन में दोपहर 12 बजे आता है, ये सब टाइम हो गए, इनको हम बोलते हैं फीचर्स। तो आपको क्या क्या इकट्ठा करना पड़ेगा, फीचर्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। और ये स्पैम है या नहीं जो आप गेस करना चाह रहे हो उसको हम बोलते हैं लेबल। तो यहाँ पे लेबल क्या हो गया कि ये स्पैम है या नहीं, ट्रू और फॉल्स। तो इस तरह के आप लेबल इकट्ठा करते हैं और फीचर्स इकट्ठा करते हैं और फिर मशीन को बताते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा आप मिनिमाइज करके रखिए एरर को कि ज्यादा से ज्यादा आप स्पैम पकड़ पाओ। तो फिर वो एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो उसी हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहते हैं कि अच्छा अगर आपके ईमेल में इस तरह के कीवर्ड हैं कि आपने लॉटरी जीती है, आपको इतना प्राइस मिलेगा, आप हमको पैसे ट्रांसफर कर दो, इस तरह के अगर वो कीवर्ड्स हैं, वर्ड यूज किए हैं, तो मतलब वो लाइकली स्पैम ही है। इस तरह की चीजें, तो ये एल्गोरिथम अपने आप सीखने लग जाता है देख देख के। तो जो इस तरह को हम ऑप्टिमाइज करते हैं उसको हम ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इसके कई सारे तरह के नाम हैं और जो एल्गोरिथम इसको ऑप्टिमाइज करता है उसे हम ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इस तरीके से ये मशीन लर्निंग काम करता है। तो आप देख रहे हैं मशीन लर्निंग जो है एआई का ही एक सब फील्ड है। नेक्स्ट, अब इसी में हम आ जाते हैं डीप लर्निंग पे। तो डीप लर्निंग जो है वो एक्चुअली में एमएल का एक सब सब्जेक्ट है। सो मशीन लर्निंग में आप बहुत तरह के एल्गोरिथम लगा सकते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग में एक तरह की फील्ड, एक तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं जिनको हम डीप लर्निंग बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको फीचर्स नहीं बतानी पड़ती हैं और ये मेनली उन चीजों पे अच्छा काम करता है जिसमें ह्यूमन अच्छा काम करते हैं। जैसे कि हम देख के बता दे भैया आदमी बूढ़ा है। हेलो, आवाज क्लियर, मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? हाँ, आवाज क्लियर है, शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम क्लियर है सर, क्लियर है सर, गो अहेड सर, क्लियर है। हाँ, तो ये उन काम के लिए अच्छी है जो ह्यूमन बहुत अच्छा कर पाते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया, जैसे कि आदमी पहचानना हो गया कि भाई ये बूढ़ा है या जवान है या कौन है, ठीक है, चश्मा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, उसने हेलमेट लगाया है कि नहीं लगाया है। या अब आज के केसेस में बहुत सारे कंट्रीज में क्या हो रहा है, कैमरे से डिटेक्ट कर रहे हैं कि वो बंदे मास्क पहन के चल रहे हैं कि नहीं, कौन पब्लिक का आदमी ऐसा जो मास्क पहन के नहीं चल रहा है। तो इस तरह के जो काम होते हैं जो ह्यूमन के लिए तो बहुत इजी हैं लेकिन मशीन के लिए बहुत मुश्किल है, वो काम डीप लर्निंग यूजुअली सॉल्व करती है। और जो डेटा से रिलेटेड काम होते हैं, सेंसर डेटा, ये सब मशीन लर्निंग अच्छा कर लेती है, लेकिन मशीन लर्निंग इस तरह के काम अच्छे नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के काम मेनली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क करते हैं, जिसको हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरल नेटवर्क ही है एक तरह से। तो हमारा ब्रेन जैसे काम करता है उसके ऊपर मॉडल किया गया है इनको, डीप लर्निंग के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को। तो ये जो न्यूरल नेटवर्क है थोड़ा थोड़ा वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, इसीलिए ये भी ऐसे काम कर पाते हैं जो हमारा ब्रेन कर पाता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बोलते हैं फ्रीलेंस थ्योरम। और वो क्या बोलता है कि
आपने जैसे कि आपका एक प्रोग्राम है जो कि बहुत अच्छा इंसान डिटेक्ट कर रहा है, अब सेम प्रोग्राम आपका ऐसा नहीं है कि आवाज भी अच्छी सीखने लग जाए, उसके लिए अलग ही प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग तरीके से फिर से रीट्रेन करना पड़ेगा प्रोग्राम को, मतलब आपको ऑडियो का डेटा देना पड़ेगा, और जब वो ऑडियो का डेटा हो जाएगा तो वो ऑडियो का काम अच्छे से करने लगेगा, लेकिन फिर उसे वीडियो का नहीं याद रहेगा, वो भूल जाएगा। तो मतलब कहने का ये है, एक तरह का मॉडल एक ही तरह का काम कर सकता है। अभी हम लोग उस कंडीशन में नहीं आए हैं कि एक ही तरह का प्रोग्राम सारे तरह के काम कर लें। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हर तरह के काम कर लेते हैं, आदमी पहचानना भी, भाषा पहचानना भी, किसको क्या रिप्लाई करना है वो भी। तो अभी के फील्ड में, आज के टाइम में हमारे पास इंडिविजुअली हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है सारी की सारी, कि आप क्या बोल रहे हैं, आपके पास इनके घर में स्मार्ट टीवी होंगे, आप बोलते होंगे, वो अपने आप चैनल लगा देता होगा। तो इंडिविजुअली हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, बोलने की, देखने की, सुनने की, ये सब। लेकिन अभी कोई ऐसा सिंगल प्रोग्राम नहीं जो एक साथ सारे प्रोग्राम कर लें। मे बी उसके लिए कल को कोई नई फील्ड आएगी। तो नेक्स्ट प्रशांत सर, नेक्स्ट क्या? हाँ, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली डीप लर्निंग को डीप लर्निंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आईटी न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इन सब की बहुत सारी लेयर्स रहती हैं, और जितनी ज्यादा लेयर होंगी उतना ज्यादा, ऐसा बोलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। मतलब उसकी लर्निंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा है, जितना हम बड़ा मॉडल बनाएं, जितने ज्यादा न्यूरॉन्स हम डाल दें आर्टिफिशियल। लेकिन जितना बड़ा मॉडल होगा, फिर उसको उतना ही डेटा भी चाहिए ट्रेन होने के लिए। जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो कंपनीज हैं, ये सब बहुत बहुत डेटा पे, मतलब टीबीज, मिलियन टीबीज ऑफ डेटा पे, पता नहीं कितने टीबीज ऑफ डेटा पे ये लोग ट्रेन करते हैं मॉडल। जैसे गूगल के पास सबका डेटा रहता है, तो वो सब पे ट्रेन होता है, तब जाके वो इतना स्ट्रांग हो पाता है, इतना अच्छा। प्रशांत सर चेंज हो गया रिप्रेजेंटेड। प्रशांत सर, हाँ, रिप्रेजेंट कर दीजिए। हाँ, कर रहे हैं। हाँ, सो इस डायग्राम से काफी क्लियर हो जाएगा कि एआई, एमएल और डीएल में क्या डिफरेंस है और ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। सो एआई बहुत पुरानी फील्ड है, काफी पहले ही स्टार्ट हो गया था। लोग सिंपल सिंपल प्रोग्राम बनाते थे, टिक टैक टो, मतलब कट्टम जीरो खेलने के, या फिर चेस खेलने के, या चेकर्स खेलने के प्रोग्राम बनाते थे। तो ये एआई फील्ड जो है काफी पुरानी है। फिर इसमें मशीन लर्निंग फील्ड आनी हुई 80s से, जब से हमारे पास थोड़ा डेटा आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम थोड़े कम डेटा पे भी अच्छा काम कर जाती है। जब सपोज करिए आपके पास बस थोड़ा सा ही डेटा है, आप क्लासिफाई करना चाहते हो कि ये फूल जो है मतलब कब इसके जो बीज होंगे फूल के वो कितने अच्छे होंगे, ये सब रेट करना चाहते हो, तो आपको थोड़े से ही फूल इकट्ठे करने की जरूरत है, और थोड़े सैंपल से ही लर्न कर सकता है। अच्छा, अगर बीज में ये केमिकल ज्यादा है तो अच्छा बीज है, ये केमिकल कम है तो खराब बीज है। तो ये 80s से स्टार्ट हो गया था, और डीप लर्निंग 2010 से स्टार्ट हुआ। इसके दो रीजन हैं। एक तो पहले के कंप्यूटर इतने पावरफुल नहीं होते थे कि आपको इतनी बड़ी बड़ी एल्गोरिथम्स और इतने बड़े बड़े न्यूरॉन को सिमुलेट कर सके ह्यूमन जैसा ब्रेन। जैसे कि अभी भी हमारे कंप्यूटर इतने पावरफुल हुए हैं कि हम एक चूहे, माउस और एक कबूतर, उनका ही जितना बड़ा ब्रेन बना पाते हैं, उनका जितना ही बड़ा ब्रेन सिमुलेट कर सकते हैं अभी के कंप्यूटर भी। लेकिन वो एनफ है ये बेसिक काम करने के लिए, उतने बड़े कंप्यूटर। तो पहले के कंप्यूटर इतने पावरफुल नहीं होते थे। जब से जीपीयू आया, जब से जीपीयू मार्केट में काफी प्रेवलेंट हो गए, तब से ही डीप लर्निंग आया है। क्योंकि डीप लर्निंग की मैक्सिमम जो ट्रेनिंग होती है वो जीपीयूज पे होती है। जीपीयूज क्या होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत फास्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं। और दूसरी चीज ये हुई कि सब लोग के पास मोबाइल आ गया, तो हमारे पास डेटा बहुत सारा आ गया। हर इंसान, जैसे कि आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे क्लिक करते हैं, आपने ये वीडियो देखा, नेक्स्ट ये वीडियो देखा, तो उससे यूट्यूब को आइडिया लग जाता है कि अच्छा, ये जो इंसान ये वीडियो देख रहा है वो नेक्स्ट ऐसे वाले वीडियो देखता है। तो फिर वो और लोग को भी सीख सीख के बताएगा कि जो इस तरह के वीडियो देखते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो ये होगा। जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब में, इसको हम रिकमेंडेशन का प्रॉब्लम बोलते हैं। जैसे कि अगर आप एक क्रिकेट की वीडियो देख रहे हैं, तो उसके बाद यूट्यूब आपको 2-3 अगर आप क्रिकेट के वीडियो देख लिए, फिर आपको क्रिकेट के ही वीडियो दिखाने लग जाएगा, क्योंकि वो ही वीडियो है। प्लीज शेयर कर दीजिए।
क्योंकि वही वीडियो ऐसे हैं जो कि आप ज्यादा लाइकली हो क्लिक करने के, तो तुरंत YouTube अपना रिकमेंडेशन चेंज करता रहता है, डिपेंड अपॉन आप क्या क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक बीच में स्लाइड्स कम है शायद, ये पुरानी स्लाइड है क्या, या इसके ऊपर इसके प्रीवियस स्लाइड, हाँ इन दोनों के बीच में एक्चुअली मैंने एक स्लाइड और डाली थी। लेटेस्ट, एक मिनट मैं शेयर कर देता हूं। एक मिनट, लेट मी शेयर। मेरे पास परमिशन है क्या शेयर की? हाँ, प्रेजेंट करो। या मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे प्रशांत ने खोल लिया था एक्चुअली, कैंसिल भी कर सकता हूँ। ओके, फिनिश करें आप। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में क्या है, ये तो आपके मैंने बता दिए फील्ड। अब इसमें जो एल्गोरिथम्स होती है मेनली 3 टाइप में होती हैं। जैसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स होती है जिसमें हमारे पास डेटा होता है पहले से ही पास्ट बिहेवियर का, उनको हम सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। मतलब जब आप क्लिक करते हैं कि ये ऐड हमने दिखाया और 100 लोग को दिखाया, 100 में से 10 लोगों ने क्लिक किया, तो उसका डेटा हमारे पास है, मतलब क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह का ईमेल जो स्पैम था कि नहीं था, तो हमारे पास डेटा है। जो हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं उसका हमारे पास पहले से ही हमको पता है कि अच्छा ये चीज ये है, ये चीज ये नहीं है। तो सुपरवाइज्ड में इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि आप ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो कि शेयर घटा या बढ़ा, तो जो आप डेटा देते हो उसमें आप बताते भी हो कि ये जो है शेयर है ये अच्छा है, ये शेयर खराब है, इसको मत बेचो, इसको मत करो। उसको हम बोलते हैं सुपरवाइज। मतलब हमको पहले से पता है और हम फ्यूचर के लिए या नए डेटा के लिए हम ट्रेन करना चाहते हैं। पर एक चीज होता है अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज में मतलब हमको पता नहीं है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, और फिर भी हम उसे ट्राई करना चाहते हैं कि वो थोड़ा ग्रुप में बांट दे। जैसे कि हम चाहते हैं कि जब हम ऐड दिखाते हैं तो हम चाहते हैं कि अपने आप एल्गोरिथम क्या करे, लोगों को यूजर्स के ग्रुप में बांट दे, जिन्हें स्पोर्ट्स पसंद हो, जिन्हें स्पोर्ट्स में ना पसंद हो। लेकिन हमको नहीं पता कि कौन से यूजर्स हैं जिनको स्पोर्ट्स पसंद है, कि जिनको स्पोर्ट्स नहीं पसंद है। तो हम क्या करते हैं, अनसुपरवाइज एल्गोरिथम लगाते हैं। अनसुपरवाइज एल्गोरिथम क्या करता है, यूजर के बिहेवियर्स को देखेगा और अपने आप ही ग्रुप कर देगा जो सिमिलर टाइप के होंगे। सपोज करिए क्रिकेट वालों का एक ग्रुप बन गया, जो एक तरह की मूवी देखते हैं उनका एक ग्रुप बन गया। तो जो नेटफ्लिक्स है स्टार्टिंग में अनसुपरवाइज लर्निंग ही यूज करता था। तो स्टार्टिंग में वो लोग क्या करते थे, जिन जिन लोगों ने मूवी देखी उन्होंने अगली मूवी कैसी कैसी देख रखी है, ये डेटा उनके पास था। तो फिर वो इसी का यूज करके, अब कोई नया यूजर आता है, नया यूजर उसके बारे में कोई डेटा नहीं है हमारे पास, नए यूजर के बारे में जिसके कोई डेटा नहीं है, वो भी उसको भी नेटफ्लिक्स रिकमेंड करता है कि अच्छा तुमने एक मूवी ये देखी है तो तुम अब अगली ये देखो, डिपेंड अपॉन, क्योंकि उसने दूसरे लोग का बिहेवियर देखा है। जो ऐसी मूवी देखते हैं वो लोग इस तरह की देखते हैं। तो सपोज करिए किसी को अगर बहुत ज्यादा किसी 1-2 एक्टर्स की मूवीज पसंद है तो नेटफ्लिक्स सिर्फ वैसी ही मूवी दिखाएगा आपको। तो इसको बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड। और दूसरी होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, लास्ट टाइप की। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि हम एल्गोरिथम को एक एनवायरनमेंट दे देते हैं जिसमें एल्गोरिथम कुछ भी काम कर सकता है और वो ये डिटेक्ट कर सकता है कि उसने अच्छा किया कि खराब किया। जैसे कि इंडस्ट्री में एक रोबोट है जिसको सोल्डरिंग करनी है, तो वो बेसिकली ट्राई करेगा सोल्डरिंग करने का, और हम बस उसे ये सिग्नल देंगे कि ये सोल्डरिंग जो लास्ट तुमने करी थी ये अच्छी थी कि खराब थी। और बेस्ड ऑन दिस फीडबैक वो सोल्डरिंग वाला जो रोबोट है वो अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का गेम्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी गूगल ने कुछ ईयर्स पहले अल्फागो निकाला था, तो वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग ही था। उसमें क्या करता है, कंप्यूटर अपने आप से ही खेलता था और डिपेंड अपॉन जीता कि नहीं जीता
वो देखता था अच्छा अगर मैं हार रहा हूँ तो मतलब मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ एनालाइज करता था, फिर अपने आप ही इंप्रूव हो जाता था। तो इस तरह के जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनको रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। ये 3 कैटेगरी है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के। नेक्स्ट, सो इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। अगर आप देखेंगे आज के टाइम में आप जो भी मोबाइल वगैरह यूज करते हैं उसमें हर जगह एआई ही रहता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हर जगह यूज होता है, आपके टीवी में, मोबाइल में, कार में, हर जगह। तो जैसे चैट बॉट्स हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल। और जो ई कॉमर्स साइट है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए, ये जब आप आइटम सर्च करते हैं तो क्या दिखाना है उसमें एआई लगा होता है। अगर आप जब आइटम देख रहे हैं तो नीचे लिख के आता होगा कि यू में ऑल्सो लाइक, कभी कभी फेसबुक में लिखा, आप किसी चीज की बात अगर कर रहे हैं तो वही चीज रिकमेंडेशन में आने लग जाता है, एड्स में आने लग जाता है कि आइटम आपको खरीदना है, इतने रुपए में मिल रहा है। तो ये सब जो है ये इन सब में भी एआई एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। उबर और लिफ्ट में जो राइड शेयरिंग ऐप होती है कि अच्छा अगर आप शेयरिंग वाली राइड लेते हैं तो आपको जाना है ए से, सपोज करिए अपने घर से कहीं ऑफिस में, तो वो एल्गोरिदम सर्च करेगी कि ऐसा कौन सा आदमी है जो भी उसी रास्ते से ही जा रहा हो। तो क्या करेगा, कार को ज्यादा डाइवर्ट भी नहीं करना पड़ेगा और पेट्रोल भी बचेगा और टाइम भी बचेगा दोनों का। तो कौन से ऐसे लोग हैं किसको लेना है कार में, किसको नहीं लेना है, ये सब चीजें भी एआई एल्गोरिदम से डिसाइड होती हैं। आपके जो फ्लाइट्स हैं सब में आजकल ऑटो पायलट होता है, तो काफी हेल्प कर देता है रियल पायलट को कि अच्छा स्टेबलाइज करने में फ्लाइट, क्योंकि ह्यूमन स्टेबलाइज करने में कभी कभी गलती भी कर सकता है, लेकिन अगर आपका एल्गोरिदम अच्छा है तो वो गलती और अच्छे से ट्रेंड है अच्छे डेटा पे, तो उसके कम चांस है गलती करने के कंपेयर टू ह्यूमन। आपके स्पैम ईमेल हो गया और फ्रॉड हो गया, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, तो क्रेडिट कार्ड के पैटर्न देखती है कंपनी, एनालाइज करती है कि अच्छा आप यूजुअली इतना इतना पैसा खर्च करते हो लेकिन इस महीने ये जो खर्च करने का जो पैटर्न है ये इरेगुलर है। तो फिर आपको कॉल करेंगे, देखेंगे कहीं क्रेडिट कार्ड चोरी तो नहीं हो गया, कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ। तो ये सब फ्रॉड जो डिटेक्शन और प्रिवेंशन होते हैं इन सब में भी एआई ही यूज होता है। और फिर आपका सोशल नेटवर्किंग हो गया फेसबुक में, और पिंटरेस्ट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इंस्टाग्राम वगैरह जो आपको पोस्ट दिखाता है वो बेस्ड ऑन कि आप किस तरह के पोस्ट देखते हो वो ऐसे ही पोस्ट दिखाएगा आपको। और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे मैंने पहले बताया, तो ऑनलाइन शॉपिंग में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब में बहुत यूज हो रहा है। और आपके आजकल पर्सनल असिस्टेंट बहुत हो गया, जैसे गूगल का है ओके गूगल, आपके एंड्रॉइड फोन्स में होगा, आईफोन में है सीरी, और विंडोज में भी कोर्टाना रहता है। तो आजकल जो भी पर्सनल असिस्टेंट है, स्मार्ट टीवीज में आपका टेक्स्ट टू स्पीच रहता है, स्पीच टू टेक्स्ट रहता है, इन सब में सबके सब एआई के ही एप्लीकेशंस हैं सब। और एआई की काफी रिक्वायरमेंट्स है बिजनेस में। अब जो इसमें मैं बताऊं आपके पास जॉब्स एआई, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके 3 तरह की जॉब्स होती हैं यूजुअली। एक तरह की आपके पास जॉब होती हैं, अगर मैं कैटेगरी में बांटना चाहूँ तो वो एक हो जाएगी डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स की जॉब्स जो होती हैं उसमें आप क्या करते हैं, मेनली डेटा को एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं कि अच्छा यूजर का जो बिहेवियर है वो पहले ये ज्यादा खरीदता था, अब ये ज्यादा खरीदता है, तो हमारी कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट ज्यादा बनाने चाहिए, इस तरह के प्रोडक्ट कम करने चाहिए। तो एक तरह के ये मार्केटिंग वाले का पार्ट हो जाता है और कॉमर्स का पार्ट। इसमें इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग आने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। और फिर आपका नेक्स्ट होता है एमएल इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर और रिसर्च इंजीनियर। इसमें क्या होता है कि इस तरह की जॉब्स में आपके पास जो मार्केट्स में है उसमें आपको चीजें पता होंगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डीप में मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी प्रोग्रामिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आपने कोई पेपर पढ़ा, अच्छा गूगल ये यूज कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सेम चीज करना चाहती है, तो आप उनका पेपर पढ़ के इम्प्लीमेंट कर पाओ। मतलब अच्छा आपने या नेट से कहीं सीख लिया, अच्छा ये चीज ऐसे करते हैं, तो आपकी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप वो चीज खुद से इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो इसमें मेन रिक्वायरमेंट प्रोग्रामिंग हो गई सबसे ज्यादा। और डेटा एनालिटिक्स में मेन रिक्वायरमेंट क्या हो गया आपका, थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड, कि बिजनेस हमारा क्या चाहता है, हमको वैसी ही एनालिसिस करनी है और वैसा ही दिखाना है। और थर्ड टाइप का जॉब हो गया आपका रिसर्च साइंटिस्ट। तो ये 3 तरह के जॉब काफी चल रहे हैं मार्केट में। थर्ड जॉब जो है रिसर्च साइंटिस्ट, इसमें क्या है, इसके लिए आपकी मैथ्स काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग की जरूरत नहीं, पर प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए इसमें भी, लेकिन मैथ्स काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप नए नए पेपर निकाल पाए और नई टेक्निक्स इवॉल्व कर पाए। जैसे कि अभी तक
सपोज करिए अभी तक आप राइट शेयरिंग कर रहे थे, कुछ नुकसान हो रहा था कि यार कुछ राइट सही नहीं आ रही हैं, तो आपको मैथ्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप वो एल्गोरिथम या फॉर्मूला ही चेंज कर सको कि अच्छा हम इस फॉर्मूले के बजाय ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारी कंपनी का ज्यादा फायदा होगा। तो ये 3 तरह की जॉब्स हैं आज के टाइम में मार्केट में, और ये 3 तरह की जॉब सेगमेंट हो गई हैं। डिपेंड अपॉन आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपका हॉबी क्या है, आपका किस तरफ ज्यादा रुझान है, आप इन तीनों में से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो प्रशांत सर, आई थिंक एआई का ये ओवरव्यू एक तरह से खत्म हो गया है। ओके, हेलो एवरीबॉडी। हेलो प्रशांत सर। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग साइबर सिक्योरिटी, सॉरी हिंदी में, साइबर सिक्योरिटी बताने से पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि एज यू सी कि मैं currently I am working on in Seagate Technologies. So I think everybody, आप सभी लोग को पता होगा कि Seagate Technology क्या है। Seagate के बारे में आप लोग को पता है। Seagate कंप्यूटर हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चर करती है। हार्ड डिस्क जो आप लोग के कंप्यूटर में रहती है, या SSD ड्राइव, आपकी फ्लैश ड्राइव जिसे बोलते हैं, तो वो है। सो मेरा काम स्टोरेज बनाने का है, हम स्टोरेज के सॉफ्टवेयर्स लिखने का है, हार्डवेयर डिजाइन करने का है। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं, आप लोग थोड़ा एआई सुन के मे भी बोर हो गए हो तो कुछ दिखाता हूं। राहुल सर, मेरी स्क्रीन दिखे तो बताइएगा। हाँ, विजिबल है। ठीक है, करंटली ये इमेज दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके, ये इमेज दिख रही है आप लोगों को? एक रैक लगी हुई है, रैक में कुछ हार्डवेयर दिख रहा है। यस सर। ठीक है, ये स्टोरेज है कंप्लीटली। ये हमारी कंपनी ने बनाए हुए हार्डवेयर्स हैं, जिसमें आपका ये गूगल हो या अमेजॉन हो या कोई भी कंपनी है, उनको अपना डेटा स्टोर करना होता है। जैसे तो प्रशांत सर ने स्टार्ट में बोला था, राहुल सर ने बताया कि डेटा, तो डेटा स्टोर कहाँ करना है, तो डेटा स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े स्टोरेज इनक्लोजर बनाए जाते हैं। इनक्लोजर को अगर मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूं, चाचेस पता है ना, जैसे कार की चाचेस होती है, उसमें आप इंजन फिट करते हो, तो वैसे ही एक चाचेस बनाई जाती है जहां पे आप बहुत सारी हार्ड डिस्क एक साथ लगा सको। ठीक है, और इन हार्ड डिस्क में आपके होस्ट सिस्टम से, यानी डिफरेंट कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं, और बाया इंटरनेट उनपे डेटा आता है। और ये जो डेटा होता है एक जगह ही, जैसे गूगल का सर्वर है या अमेजॉन का है या माइक्रोसॉफ्ट का है, एटलीस्ट सभी कंपनियों का अपना छोटा या बड़ा डेटा सेंटर जरूर होता है। डेटा सेंटर बोलते हैं इनको, जहां पे इस तरह से हार्डवेयर लगे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। करंटली ये जो हार्ड डिस्क है, इसमें जो डेटा है, इसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। जो राहुल सर ने कहा कि लर्न करता है, टीबीज में डेटा होता है, वो डेटा इस तरह से एक करंट मैंने जो फोटो दिखाई है, केवल एक ही ऑफिस में डेटा रखा हुआ है, बट ये इंटायर वर्ल्ड में हो सकता है कि गूगल का एक यूरोप में रखा है डेटा सेंटर, एक यूएस में है, इंडिया में है, चाइना में है, सिंगापुर में है। तो इन सभी से ईडी, आप लोग शायद टेक्निकल टर्म ईडी, मिलियंस ऑफ पेटा डेटा। एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली राहुल सर? हाँ, ऑडिबल। आई थिंक वो इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बोल रहा, सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सब लोग अपना कैमरा ऑफ कर दें। कैमरा ऑफ कर देंगे तो बाकी लोगों को आसानी होगी, जिनके आसानी होगी। हाँ, प्लीज कैमरा ऑफ कर लें बाकी लोग। तो ये पेटा डेटा ऑफ क्या है ना, डेटा इसमें स्टोर होता है। और जो भी हम स्टोर की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी, जो मैं साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट सिक्योरिटी है। थ्रू इंटरनेट या थ्रू नेटवर्क, इस सिक्योरिटी में कभी भी फिजिकल सिक्योरिटी नहीं आती। फिजिकल सिक्योरिटी समझते हो? अगर मैं इस लैब में घुस जाऊं और उस लैब से एक हार्ड डिस्क निकाल लूं, उसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता। ओके, इट इज फिजिकल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा। अगर किसी को किसी के पीसी पर
वो खुद जाके हाथ लगा सकता है, टच कर सकता है, उसमें से हार्ड डिस्क निकाल सकता है, उसमें से रैम निकाल सकता है। आप समझ रहे हो ना? तो उस सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल सिक्योरिटी। ठीक है, मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है इंटरनेट पे सिक्योरिटी। सर आप अपनी प्रशांत सर पीपीटी शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है इंटरनेट के थ्रू जो आपको सिक्योर करना होगा। प्लीज म्यूट। गौतम अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। गौतम ओके, गुड इनफ। सो साइबर सिक्योरिटी है आपका जो डिजिटल अटैक होते हैं आपके सिस्टम पे, आपके पीसी पे, या आपका पीसी नहीं, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, जो भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। वही नहीं, आजकल बहुत सारे लोगों के पास आई थिंक टीवी होंगे जिसमें कैमराज होते हैं, या घर पे आपके पास कैमराज लगे रहते हैं, सेंसिंग सिक्योरिटी कैमराज होते हैं। कुछ लोगों के जो गेट होते हैं वो भी लॉक अनलॉक करने के लिए डिजिटल होते हैं। आप लोग ऑफिसेज में अगर जाते हो, या हो सकता है आपके स्कूल में भी या कॉलेज में भी हो, आईडी कार्ड इस्तेमाल करते हो, आप टच करते हो तो वो गेट ओपन होता है या क्लोज होता है। तो इस सभी तरह के जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, इनको कोई आउटसाइड से अनऑथराइज्ड पर्सन अटैक ना करे, या जो अटैक होता है उसको कैसे रोकते हैं, या वो जो पूरा जो डोमेन है इंटरनेट सिक्योरिटी का, इसको हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो जो आपके पीसीज होते हैं या आपका मोबाइल होता है, एनीथिंग, मैं सिर्फ पीसीज और मोबाइल की बात नहीं कर रहा, जो भी चीज आप अपने इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हो वो सभी पे अटैक हो सकता है। अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट है, इट्स मीन उस पे डेटा आ सकता है, उससे डेटा जा सकता है। ठीक है, तो वो सभी को हमें सिक्योर करना होता है। तो उनको सिक्योर, गौतम, प्रशांत सर अगेन प्लीज रिप्रेजेंट। सो जो भी आपके हार्डवेयर्स होते हैं, वो हार्डवेयर किसी भी तरीके से हो सकते हैं, उनको जो सिक्योर करना होता है इंटरनेट सिक्योरिटी में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको कोशिश करता हूं बताने के लिए इजी लैंग्वेज में कि सिक्योरिटी में इशू क्या होते हैं, या किस तरीके के आपके सिस्टम पे अटैक हो सकते हैं। सो उनमें से एक अटैक होता है, कहते हैं बैकडोर अटैक। ठीक है, बैकडोर अटैक का मतलब होता है कोई चुपके से आपके सिस्टम में घुस जाए, ठीक है, और घुस के वो आपके सिस्टम को एक्सेस करने लगे, आपके रिसोर्स को यूज करने लगे। जैसे आपका पड़ोसी आपके सिस्टम में घुस जाए और आपके सिस्टम पे इंटरनेट है और वो उस इंटरनेट को यूज करने लगे, जो उसको चाहिए वो वहां से उसे डाउनलोड करे और अपने पास लेके चले जाए। आपके पीसी को जब चुपचाप यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बैकडोर सिक्योरिटी। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, आप लोगों ने कब वेबसाइट सभी लोग यूज करते हैं, लेट अज्यूम अभी हम लोग ये गूगल यूज कर रहे हैं, हम लोग गूगल मीट का यूज कर रहे हैं। अभी करंटली इस मीटिंग में अज्यूम करो कि हम लोग सिर्फ 200 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम 200 लोग, उससे ज्यादा ज्वाइन नहीं कर सकते। एक हैकर क्या करे, या कोई वो क्या करे कि चुपचाप उसको अगर कहीं से लिंक वो आप लोगों से ले ले और बॉट्स वर्चुअल ऐसे ही चुपचाप दूसरे लोगों को ज्वाइन कराते हैं, डमी यूजर्स को ज्वाइन कराता जाए, बार बार ज्वाइन करे, बार बार हटे, ज्वाइन करे हटे, प्रेजेंटिंग करता जाए। इस तरीके से वो क्या करेगा, जो रियल स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 200 लोग हैं पहले से, दूसरे उसने बॉट्स को, या आप कह सकते हो दूसरे डमी लोगों को ज्वाइन करा दिया है, और जो रियल जिनके लिए मीटिंग बनाई गई थी वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के काम को आप डिनायल ऑफ सर्विस कहते हो, और ये हर एक में अलग हो सकता है। जैसे आप लोग के एग्जाम होते हैं, एग्जाम से रिजल्ट निकलते हैं, तो उस समय सर्वर बहुत डाउन होता है, तो उस समय कोई कंपनी ऐसा कर सकती है कि ओके, मुझे इस कंपनी का नाम बर्बाद करना है जिसने ये रिजल्ट को एक्सपोज कर रहा है या रिजल्ट शो कर रहा है। लेट अज्यूम कि
राहुल सर की कंपनी है, राहुल सर की कंपनी को आपके यूनिवर्सिटी ने दिया है कि हमारे बच्चों का रिजल्ट आप दिखाओगे। 3 अगस्त को रिजल्ट आया मॉर्निंग 8 बजे आप सबने सिस्टम पे ऑन किया, और ऑन करते ही क्या हुआ कि पेज ही नहीं ओपन हो रहा है। तो राहुल सर ने क्या देखा कि कोई उनके सिस्टम पे कंटिन्यूअसली खटाखट उल्टे सीधे पासवर्ड के साथ कंटिन्यूअस उसके सिस्टम पे रिजल्ट चेक कर रहा है। वो गलत भी हो सकते हैं, बट सर की कैपेसिटी एज पर कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट थे, उन्होंने 20,000 को एक्सेस करने के लिए बनाया था। बट क्या हुआ, सामने वाले हैकर ने 50,000 यूजर्स डमी उस पर अटैक कर दिए कि डमी लोग चेक करते रहे। उसके लिए स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, कोड लिखे जाते हैं। ठीक है सर, प्रेजेंटेशन किसी और के पास है, आप शेयर करेंगे? प्रशांत सर। हेलो प्रशांत सर। फिर थर्ड टाइप का अटैक होता है डायरेक्ट एक्सेस अटैक। डायरेक्ट एक्सेस अटैक का मतलब होता है कि कोई बंदा आपके सिस्टम पे अपना पेन ड्राइव कनेक्ट कर सके। लेट एज्यूम आपका पीसी है, उस पे अपना पेन ड्राइव कनेक्ट करके आपका डेटा कॉपी कर सके। तो इस तरह के अटैक को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस अटैक। एक होता है एयर ड्रॉपिंग, इसका मतलब होता है देखना। मतलब मैंने आप लोगों को आजकल टीवी आ रहे हैं, आपके मोबाइल में कैमराज है, ऑलमोस्ट आप सबके पास कैमराज हैं, मोबाइल है, मोबाइल्स में कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, बैकवर्ड कैमरा है। कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में हो, जो जब चाहे तब आपका कैमरा ऑन करके उस समय जो भी कुछ हो रहा है, आपके कैमरा का फ्रंट कैमरा जो भी दिखा रहा है या बैक कैमरा जो भी है, जो भी दिखा रहा है उसको रिकॉर्ड कर सके, उसको देख सके। इस तरह के अटैक को कहते हैं एयर ड्रॉपिंग अटैक। प्रशांत सर नेक्स्ट। फिशिंग, जैसा कि अभी आप गवर्नमेंट की तरफ से भी कई बार आपकी कंपनी, आपके बैंक, एसबीआई या किसी भी बैंक से आप लोगों को कॉल भी आते होंगे कि सर अपना पिन कोड मत शेयर करें, सर अपना अकाउंट डिटेल किसी को मत बताएं। तो बहुत सारी कंपनीज क्या होती हैं, थ्रू जो हैकर्स होते हैं या चोर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको मेल भेजते हैं। उस मेल में क्या करते हैं, सर आपने 10,000 करोड़ जीता है, सो हम आपको ये 10,000 करोड़ देना चाहते हैं, आप अपना अकाउंट डिटेल दो। तो आप क्या करते हो, जल्दबाजी में अकाउंट डिटेल दे देते हो। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं कि सर ये 10,000 करोड़ हम चूंकि यूएस से दे रहे हैं या एग्जांपल यूरोप की किसी कंट्री से दे रहे हैं, तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कुछ फीस लगेगी। ठीक है, फिर वो आपसे कहते हैं फीस लगेगी, ये करेंगे वो करेंगे। फिर इस तरह के जो अटैक्स होते हैं वो, उसमें क्या होता है, आपके प्राइवेट डेटा ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो या अपना बैंक अकाउंट का कार्ड यूज करते हो, तो उसमें क्या करता है, अकाउंट में डेटा यूज करने के बाद वो आपसे ओटीपी मांगता है। बट बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज, जहां पे अगर आपने अपने सिर्फ कार्ड का नंबर दे दिया, पीछे सीएसवी डिटेल दे दो, बस ये 2 चीज दे दो, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, उसके पास ओटीपी नहीं आएगा, क्योंकि उस कंट्री में उनके लॉ में ओटीपी का रूल नहीं है। तो आप अपना डेटा उनको दे देते हो। ठीक है, एक टाइप है प्रिविलेज एस्केलेशन। जैसे आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, कॉलेज के अंदर जो पीसीज होते हैं वो टीचर्स भी यूज करते हैं, फैकल्टी भी यूज करती है, स्टूडेंट भी यूज करते हैं। बहुत सारी फैकल्टीज अपना असाइनमेंट्स बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो उनको एक स्पेशल एक्सेस होता है, और उनके पास स्पेशल एक्सेस एक फोल्डर का होता है, जहां पे वो अपना डेटा और ये सब चीजें डालते हैं, अपना फोल्डर में अपना डेटा सब सेव करके रखते हैं। बट क्या करते हैं, स्टूडेंट किसी तरीके से, टीचर का भी अपना पासवर्ड डाल रहा है, वो चेक कर लिया, या रैंडम उनका नाम, बर्थडे सब चेक करके इस तरीके से देख लिया। ठीक है, तो रैंडम, तो इस तरह का जो टीचर को एक्सेस था वो स्टूडेंट को एक्सेस मिल जाए, वो किसी भी तरीके से ले, तो इस सब को हम कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग, आई थिंक आप सभी समझते हो, किसी भी चीज को आप रिवर्स तोड़ फोड़ के, जैसे कार आई, आपने कार के सारे पुर्जे निकाल के देख लिया कि ओके ये कार कैसे, या किसी और का कोड है, आपने इंटरनेट से निकाला, सारा डिटेल पढ़ लिया, और फिर वैसा ही सेम कोड अपनी लैंग्वेज में लिख दिया और कहा कि ये मेरा है।
तो ये चीज रिवर्स इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। प्रशांत सर नेक्स्ट पेज। मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक वी आर ऑलरेडी लेट। सो ये जो अटैक्स होते हैं, इन सब अटैक्स ऑटोमेटिक नहीं होते, इन सब के लिए सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं, तो या स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो ये सॉफ्टवेयर और जो स्क्रिप्ट्स होते हैं इनको हम कहते हैं मालवेयर। ठीक है, मालवेयर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, रोज सॉफ्टवेयर और स्केयरवेयर। आप लोग को एक सिंपल पहला एग्जांपल बताता हूं, सिंपल मालवेयर का। सोनी कंपनी जब म्यूजिक सीडीज जो होती थी वो सीडी में आती थी, तो सोनी कंपनी ने क्या कर रखा था, उसमें उसने एक अपना छोटा सा सॉफ्टवेयर डाला था। जब आप सीडी अपने में कॉपी करते थे या इंस्टॉल उसमें से सुनते थे, तो एक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर देती थी। वो क्या करता था सॉफ्टवेयर, वो चुपचाप आप कितनी बार कॉपी कर रहे हो इस सीडी से, किसको कॉपी कर रहे हो, ये गाना कितनी बार सुन रहे हो, या आप क्या कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे, वो सिर्फ ये चेक करने के लिए उसने डाला था कि आप ये किसी और को पेन ड्राइव में कॉपी करके तो नहीं शेयर कर रहे हो, कहीं दूसरी सीडी तो नहीं बना रहे हो। उसने इसके लिए बनाया था, बट उन्होंने क्या किया, ये करके दूसरे के कंप्यूटर पे बिना पूछे उसका डेटा रीड कर रहा था, देख रहा था, उनकी हैबिट चेक कर रहा था, विच इज इलीगल। सो ये सॉफ्टवेयर उन्होंने अपने यूज के लिए, अच्छे काम के लिए बनाया था, अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाया था, बट उन्होंने उसके लिए रूल ब्रेक कर दिया था। दूसरों का डेटा रीड करना, जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए था, वो काम उन्होंने कर दिया था। ये सबसे वन ऑफ द बेसिक एग्जांपल है जहां पे हम इसे कहते हैं मॉलवेयर सॉफ्टवेयर। प्रशांत सर नेक्स्ट। सो मैंने कहा था मालवेयर बहुत तरीके के होते हैं, उनमें से एक सिंपल नाम आप लोगों ने सुना होगा, वायरस। सो वायरस क्या होता है, वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या ऐसा कोड होता है जो आपके किसी दूसरे कोड के साथ कनेक्ट हो जाता है। जब आप उसको, जस्ट एग्जांपल, आपने क्या किया, एक फोल्डर ओपन किया, जब वो फोल्डर ओपन किया तो उस फोल्डर के ओपन होने पर वो वायरस रन कर गया और उसने अपनी कॉपी बनाना चालू किया। इसका सबसे पहला एक एग्जांपल था क्रीप वायरस, सबसे पहला जो आया था 1970s में। ये क्या करता था, आपका जो उस समय सबके पास बहुत ही छोटी सी हार्ड डिस्क होती थी, बहुत ज्यादा नहीं होता था, बहुत केबीज में काम होता था, केबीज में। तो वो क्या करता था, अपने डुप्लीकेट बनाता जाता था और पॉपअप करता रहता था। आप में से जो फैकल्टी है, जो पुरानी फैकल्टी, उन्होंने इस चीज कि ऑटोमेटिक एक पॉपअप करता चला जाता था, ओ कैश यू इफ यू कैन, और इस तरीके से वो कुछ ना कुछ मैसेज देता रहता था और आपको कुछ करने नहीं देता था। तो ये सबसे पहला एग्जांपल था वायरस का। तो वायरस वो होते हैं जो आपके किसी और सॉफ्टवेयर के साथ या किसी और आपकी एक्टिविटी के साथ रन होते थे, ऑटोमेटिक रन नहीं होते थे। आप जब कुछ करते थे तभी वो रन होते थे, बस वो अपने आप को अटैच कर देते थे फोल्डर के साथ या आपके स्क्रिप्ट के साथ या आपका सिस्टम जो बूट होने का सीक्वेंस है उसकी स्क्रिप्ट के साथ अपने आप को ऐड कर देते थे, वो वायरस होता था। सर नेक्स्ट। प्रशांत सर नेक्स्ट स्लाइड। प्रशांत सर। ओके, प्रशांत सर जब तक कर रहे हैं तब तक अगला कैटेगरी है वॉर्म की। वॉर्म कुछ नहीं होते हैं, वॉर्म भी जस्ट वायरस होते हैं। बस वॉर्म और वायरस में इतना डिफरेंस होता है कि वायरस को रन करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, वॉर्म ऑटोमेटिक रन हो जाते हैं। अगर वो एक बार आपके कंप्यूटर पे आ गए तो वो ऑटोमेटिक रन करेंगे, तो उनको हम वॉर्म कहते हैं। अगला होता है ट्रोजन हॉर्स। आप लोगों ने अगर कोई एक मूवी देखी होगी ट्रॉय, उसमें क्या, हाँ मूवी देखी होगी ट्रॉय, तो उसमें क्या होता था कि उन्होंने एक घोड़ा बनाया था एक किले को कब्जा करने के लिए। घोड़ा बनाया था, घोड़े में सैनिक, बहुत बड़ा घोड़ा बनाया था, उसमें सैनिक को चुपचाप अंदर बैठ गए थे और सामने वालों ने घोड़े को अपने किले में लेके चले गए। उनको लगा कि सामने वाले हार मान के भाग गए हैं, जबकि उन्होंने कुछ लोग उसमें छुपा दिए थे। और जब रात का अंधेरा हुआ तो वो उस घोड़े से निकले और दरवाजा खोल दिया। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ये एक ग्रीक कहानी है। तो ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके किसी प्रोग्राम के साथ चुपचाप आपके कंप्यूटर में बैठे होते हैं और जब उनको लगता है कि आप कंप्यूटर पर कुछ नहीं कर रहे हो, खुला हुआ है, या आप कुछ कर भी रहे हो, तो वो चुपचाप आपका डेटा जो होता है एक पीछे से प्राइवेट एक्सेस दे देते हैं किसी और को, और वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, आपके प्राइवेट डेटा को या आपके पूरे कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस कर सकता है। इस तरह का जो वायरस होता है या इस तरह के जो वॉर्म होते हैं, उनको सॉफ्टवेयर होते हैं, स्क्रिप्ट होती है, उनको हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रशांत सर। रैंसमवेयर।
आई थिंक अभी ये लास्ट ईयर का ये रैनसमवेयर जो होता है वो क्या करता है, वो कुछ नहीं करता है, वो चुपचाप आपके कंप्यूटर में आएगा, आपका सारा जो सिस्टम है, सारा डेटा है, उसको इनक्रिप्ट कर देगा, और इनक्रिप्ट करने के बाद आपका जब सिस्टम ऑन करोगे तो आपको एक विंडो आएगी, वो बोलेगा कि देखो मैंने आपका सिस्टम इनक्रिप्ट कर दिया है, अगर आपको अपना सिस्टम एक्सेस करना है तो मुझे इतना पैसा पे करो, और पैसा जब आप पे करोगे तो मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा और आप फिर अपना एक्सेस कर सकते हो। तो हमारे और आपके लिए जो पर्सनल कंप्यूटर शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, पर एक बिजनेस कम्युनिटीज के लिए या बैंकिंग सिस्टम के लिए अगर उनका सिस्टम इनक्रिप्ट कर जाए तो बहुत बड़ा इशू है। तो इसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था लास्ट ईयर्स में, और ये सबसे बड़ा थ्रेट है इस समय कि लोग आपकी गलती की वजह से आपका सिस्टम एक्सेस कर लेते हैं और इनक्रिप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ये आपके सिस्टम में चुपचाप घुस जाता है, ये एक्सेस नहीं देता है, बट क्या करता है, आपका डेटा कॉपी करता है और फॉरवर्ड कर देता है दूसरे को। तो इससे क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो वो आपका डेटा कॉपी कर रहा है और फॉरवर्ड कर रहा है, दूसरा वो आपका इंटरनेट यूज कर रहा है, आपका प्रोसेसर यूज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम भी धीमे हो जाते हैं। तो इन्हें हम स्पाईवेयर कहते हैं। एडवेयर जो होते हैं ये लीगल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपने गूगल का देखा होगा, गूगल एडवेयर है, जब भी आप कोई साइट ओपन करते हो उसमें एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो वो गूगल या आपका यूट्यूब, उस पर जो एडवर्टीजमेंट आते हैं गूगल एडवेयर का एग्जांपल होता है। बट कुछ लोग इसका भी गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी को कुछ सेंट पैसा देते हैं, आप मेरा सॉफ्टवेयर दिखाओ कि ये फ्री का है, ऐसा ऐसा है, कंपनी इसका क्या है, उनको एडवर्टीजमेंट दिखाना, एडवर्टीजमेंट दिखा देते हैं, गलती से वो गलत सॉफ्टवेयर का एडवर्टीजमेंट हो जाता है और पब्लिक उसको इंस्टॉल कर लेती है फ्री समझ के, और वो आपके सिस्टम को कुछ भी कर सकते हैं, वो एक्सेस दे देते हैं, या आपके ट्रोजन इंस्टॉल कर सकते हैं, रैनसमवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ बॉम्ब इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एडवेयर भी इसलिए बहुत सोच समझ के एडवेयर भी यूज करने चाहिए। सो मैंने आपको बताया ये अटैक्स, तो जो अटैक्स के टाइप्स बताए, अभी हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे काउंटर मेजर्स होते हैं। काउंटर मेजर मतलब आप क्या कर सकते हो, आप किस तरीके से इन सब चीजों से बच सकते हो। तो एज अ पर्सनल हमें बहुत सारी चीजें होती हैं, सिक्योरिटी बाय डिजाइन, सिक्योरिटी बाय आर्किटेक्चर, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी, हार्डवेयर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कैपेबिलिटी एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स, बट हर चीज पर्सनल लोगों को नहीं करना होता है। इसमें से 80-90% चीज जो मैंने आपको स्टोरेज सिस्टम दिखाया था, इमेज दिखाया था, जो कंपनीज होती है उनके लिए होती है। एज अ यूजर आपके लिए सिर्फ दो ही चीज होते हैं। मान लो मेरा पर्सनल पीसी या पर्सनल मोबाइल है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको अपने इसमें एंटीवायरस, आप लोगों ने सुने होंगे, वो भी ओरिजिनल कंपनीज का, ना कि फ्री वर्जन किसी भी कंपनी का इंस्टॉल करना चाहिए, वो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहिए। अगर आप इंटरनेट से उठा के डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें से पहले से ही जिसने भी वो फ्री किया है उसमें उसने अपने मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल के रखे हैं। तो आप जब भी यूज करोगे, मे बी आप अपने कंप्यूटर से आजकल अपना बैंकिंग सिस्टम भी यूज करते हो, तो सब कुछ रीड कर रहा है चुपचाप। तो आपको कोशिश करना चाहिए ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करना चाहिए। फायरवॉल, डिफरेंट कंपनीज के फायरवॉल, प्रॉपर फायरवॉल यूज करना चाहिए, फायरवॉल को कॉन्फ़िगर सही से करना चाहिए। थर्ड, यूजर कंट्रोल एक्सेस जो रहते हैं, मतलब आपने अपने कंप्यूटर में एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। नॉर्मली आप अपना यूजर बनाते हो, पासवर्ड बनाते हो, बहुत सारे लोग यूजर बनाते हैं पर उसका पासवर्ड नहीं करते। कंप्यूटर खोलो, ऑन हो जाता है, उसमें पासवर्ड नहीं होता, और होता है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 8। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक अच्छा पासवर्ड रखना चाहिए, सिक्योर पासवर्ड रखना चाहिए, और जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है उसका भी एक सिक्योर पासवर्ड रखना चाहिए, अदरवाइज जो डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है कई बार तो थर्ड पार्टी आपको एक्सेस कर सकता है। ठीक है। फिर क्रिप्टोग्राफी, इफ पॉसिबल अपनी ड्राइव को हमेशा, अगर आपकी ड्राइव में प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट चीजें हैं, तो आपको उसको क्रिप्टोग्राफी का यूज करके, डिफरेंट कोड आते हैं, अपने डेटा को क्रिप्ट रखना चाहिए। अगर किसी ने आपका डेटा हैक भी कर लिया तो वो उनको इनक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है, जिसके लिए आपको क्रिप्टोग्राफी सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं। फिर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये देखते हैं कि अच्छा लास्ट अटैक हुआ था तो उसने क्या क्या किया था, ओके ये वल्नरेबिलिटी है हमारे सिस्टम में, तो इसको रिजॉल्व करो। तो इसे हम कहते हैं आईडीएस। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप ऑडिटिंग करते हो अपने सिस्टम के सबके। ये नॉर्मली बड़े इंडस्ट्रीज में होते हैं या छोटे करते हैं, बट आप भी कर सकते हो अपने सिस्टम को कि ओके लास्ट टाइम मेरा सिस्टम हैक हो गया था,
या इस वायरस को इंस्टॉल किया, ये सॉफ्टवेयर इस साइट से इंस्टॉल किया था, मुझे वायरस आ गया था, नेक्स्ट टाइम से मैं इस साइट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करूंगा। इस तरह की चीजें, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स, अगर आपके फिशिंग किसी कंपनी ने आपको एक बिल भेजा है या कोई आपको फोन आया है कि सर आपने इतने करोड़ जीते हैं, अपना अकाउंट का डिटेल बताओ, पिन नंबर बताओ और मैं आपको इतना पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, ये नहीं करना चाहिए। आपको रिस्पॉन्स में क्या करना चाहिए, आपको पुलिस को फोन करना चाहिए, वो नंबर पुलिस के साथ शेयर करना चाहिए और बताना चाहिए। तो ये सारी रिस्पॉन्स है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है अटैक डायरेक्ट इंडस्ट्री पे हो। फर्स्ट वो छोटे छोटे लोगों को पकड़ता है, मे बी उनसे कुछ प्रॉब्लम ना हो, पर वो ट्राई करता है कि देखे लोग फंस रहे हैं कि नहीं। तो ये काउंटर मेजर्स रहते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे CSIT के लोग होंगे जो कोडिंग लिखते होंगे। सिक्योर कोडिंग सिक्योर करने से मतलब है आप अपने कोड में जहां जरूरत हो पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सको अपने उसको कोड को। मतलब ऐसा ना हो कि आपने सर्वर क्लाइंट का कोड लिख रखा है और कोई भी कोड को पढ़ के आपके कोड में डेटा भेज सके। तो आपका कोडिंग स्टाइल भी सिक्योर होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी TCP का कोड लिखे और आपके कोड को एक्सेस कर सके। आपके में मल्टी थ्रेडेड कोड लिखते हो, मल्टी थ्रेडिंग करते हो, IPC इंटर प्रोसेस प्रोटोकॉल्स यूज करते हो, तो वो सब यूज करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि आपने प्रोटोकॉल जिसके लिए बनाया है सिर्फ वही एक्सेस कर सके, थर्ड पार्टी यूज ना कर सके। तो ये कोडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज आप जो कोड लिखते हो आप फॉलो नहीं करते हो, पर जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। जैसे मैं डेटा स्टोरेज का कोड लिखता हूं, मैंने आपको स्टोरेज, मेरा कोड ऐसा नहीं होना चाहिए कोई थर्ड पार्टी उसमें घुस जाए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। प्रशांत सर, हेलो प्रशांत सर। यस यस, ठीक है। तो डेटा साइबर सिक्योरिटी होती है वो आपकी, हाँ, आप अपना शेयरिंग कर सकते हैं। हाँ, okay. It's already shared. No, it is not shared. Take a presentation. Okay. So cyber securities इस तरह से आपकी भी responsibilities होती हैं। I think हम ओके 140 हो गया। प्रशांत सर, आप आगे अब quickly I will go about the cryptography. So क्रिप्टोग्राफी कुछ नहीं है, आपका जो प्लेन टेक्स्ट डेटा है उसको एक की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं या एक रैंडम टेक्स्ट में जनरेट कर देते हैं, दैट इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी। तो सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूशन इस टाइप की टेक्निक स्टार्ट हुई थी, जैसे A को B से कर दिया, B को C से, C को D से या A को Z से। ये एक सब्स्टिट्यूशन टाइप की टेक्निक थी। इसका ड्रॉबैक क्या था कि आपके पास पॉसिबल जो चेंजेस है वो A से लेके Z तक ही है, 26 है कॉम्बिनेशन। तो वो कोई भी डिटेक्ट कर सकता था, ह्यूमन बीइंग भी अगर बार बार ट्राई करे तो वो जान जाएगा कि A को किस लेटर से चेंज किया गया है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक की का इस्तेमाल किया गया कि ठीक है भाई, एक की डालो जो किसी को ना पता हो और वो क्या करे, वो चेंज कर दे आपकी प्लेन टेक्स्ट को इस तरीके से कि वो किसी के लिए यूजफुल ना रहे। जब दोबारा आप की लगाओगे, डिक्रिप्ट करोगे, तो आपको ओरिजिनल डेटा मिलेगा। तो जब आप डेटा ट्रांसफर करते हो फ्रॉम योर डिवाइस टू सर्वर, या आप कभी डेटा को प्रोसेस करते हो, यूज करते हो, उस ड्यूरेशन में अगर डेटा आपका एन्क्रिप्टेड रहेगा तो वो सेफ रहेगा। अगर किसी को मिल भी जाएगा तो उसके किसी काम का नहीं होगा बिना की के। तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो सीक्रेट की क्या है, एक सिंगल की है जो सेंडर और रिसीवर दोनों के पास होना चाहिए। एलिस और बॉब इसमें दो एजेंट होते हैं क्रिप्टोग्राफी की फील्ड में, जो सिक्योरली अपने आपस में लवर हैं, अपने मैसेज शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी बिचौलियों को बताना नहीं चाहते वो क्या लिख के भेज रहे हैं। तो क्या करेगा, एलिस अपना मैसेज एन्क्रिप्ट करके भेजेगा, इंटरनेट से होते हुए बॉब के पास पहुंचेगा। बॉब के पास वो की है अगर, तो वो ओपन करके उसको देख लेगा। अब इसमें चैलेंज क्या है कि की कैसे पहुंचेगी। अगर हाँ वो एलिस खुद जाके पहले की बॉब को की दिया है तब तो ठीक है। अगर आप किसी और तरीके से की भेज रहे हो तो वो की टैप हो सकती है, और अगर की को किसी ने पकड़ लिया तो आपका सारा कम्युनिकेशन उसने पकड़ लिया और उसको आप डिक्रिप्ट करके आपकी इंफॉर्मेशन देख सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आई। बेसिकली इसके बीच में RSA एक बहुत वेल नोन एल्गोरिथम है, जिसको क्या बनाया गया कि प्राइवेट की होगी, पब्लिक की होगी।
तो पब्लिक की से भेजो जो सबको पता है, लेकिन उसको खोल सिर्फ प्राइवेट की से सकते हो। तो अगर मैंने पब्लिक की अपनी बता दिए और आपने मेरी पब्लिक को यूज करके एनक्रिप्ट करके भेजा, तो कोई इसको खोल नहीं पाएगा, मैं ही खोल पाऊंगा, मेरी प्राइवेट की मेरे पास है। तो ये इस तरीके से सिक्योर किया गया। इंडस्ट्री में आज की डेट में एफपी एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं कि इनक्रिप्शन बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स कंज्यूमिंग जॉब है कि बहुत बड़े बड़े सिस्टम चाहिए, इंक्रिप्शन टाइम लेता है, सब कुछ लेता है। इसको अवॉइड करने के लिए, फास्ट काम करने के लिए कैसे किया जाए, तो कुछ टेक्निक्स हैं जो अडॉप्ट की गई हैं इंडस्ट्री में। जैसे एक होता है फॉर्मेट प्रिजर्विंग इंक्रिप्शन, दूसरा होता है डेटा एनोनिमाइजेशन और तीसरा होता है टीपी। तो जैसे आपकी एफपी क्या है कि मान लो 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड में भी कोई ना कोई सीक्वेंस होगा। तो अभी क्या करते हैं, इसको इनक्रिप्ट कर देते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग कोई नंबर पता करते हैं कि 0 को हम किसी और से रिप्लेस करेंगे, 1 को किसी और को रिप्लेस करेंगे, 2 को किसी और से। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे 0 को 7 से, 1 को 3 से, 2 को 1 से, इस तरीके से रिप्लेस कर दिया गया। तो अभी आपका क्रेडिट कार्ड नंबर जो होगा वो कुछ और ही दिखेगा, जो कि किसी को पता नहीं चलेगा। तो जब आप कोई इंफॉर्मेशन भेजोगे सर्वर को कि हमारा क्रेडिट कार्ड का इतना पेमेंट जो है ट्रांसफर करो, तो वो नया नंबर भेजेगा जो कि आपका एफपी बना हुआ एक रैंडम वैल्यू होगा। ये सर्वर को जाएगा, सर्वर इसको डिकोड करेगा और उसके बाद वो पेमेंट अलाउ कर देगा। तो रास्ते में कहीं भी आपका क्रेडिट कार्ड नंबर जो है वो किसी को रिवील नहीं होगा, वो सेफ रह पाएगा। ये एक लूज टेक्निक है, लेकिन इंडस्ट्री में इसे यूज किया जाता है। दूसरी टेक्निक होती है डेटा एनोनिमाइजेशन। अगर आपका आइडेंटिटी आपके डेटा के साथ लगा हुआ है, जैसे आपका आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड से ये इंफॉर्मेशन हो कि आपके पास कितने बीघे जमीन है, क्या क्या आपके पास प्रॉपर्टी है, कितना आपके अकाउंट में बैलेंस है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके नाम के साथ जुड़ी हो, तब ये इंफॉर्मेशन जो है किसी के काम की हो सकती है। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन में से अगर आपका नाम, आपका एड्रेस हटा दिया जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, लोगों के पास में कितना भी पैसा हो सकता है। तो इसी टेक्निक को डेटा एनोनिमाइजेशन बोलते हैं, जिसको यूरोपियन यूनियन और जीडीपीआर में कंप्लायंस में एक्सेप्ट किया जाता है कि आप क्या करो, एक रैंडम नंबर डाल दो, आप लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को अलग कर दो और उनकी जो फाइनेंशियल और अदर टाइप की इंफॉर्मेशन है उनको अलग रख दो। तो क्या होगा, लोग जोड़ के नहीं देख पाएंगे एक साथ कि ये किसकी इंफॉर्मेशन है। आपका नाम एलिस बॉब जॉन अलग रखा हुआ है और आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है वो अलग रखा है, और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक नंबर सेव कर दिया गया है कि जब भी ये नंबर आएगा इसका मतलब ये इससे रिकॉर्ड रिलेटेड होगा। तो इससे क्या होगा, लोगों को अगर सर्वर से डेटा वो चुराते भी है तो क्या होगा, लोगों को या तो नाम मिलेगा या तो वो मिलेगा, तो इससे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। तीसरा है ट्रांसपेरेंट डेटा इंक्रिप्शन, टीडी, जो आज के डेट में ओरेकल जैसे सिस्टम्स में यूज होता है, जहां पे ये डेटाबेसेस होते हैं और ये क्या करते हैं, आपका डेटा देगा जो उसके यूज का नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से मैं क्रिप्टोग्राफी में और कुछ भी बोलना चाहता हूं, बिकॉज टुडे प्राइवेसी इज utmost important फॉर एवरीवन, और ये एक इसेंशियल टॉपिक है जो पूरे अपनी खुद में एक वर्कशॉप का टॉपिक है। मैं अभी, मेरा ये रिसर्च एरिया भी है, तो कैरियर ट्रैक में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, आप लोग जैसे डिप्लोमा के बच्चे हैं वो 3 ही ट्रैक मुझे दिख रहे हैं। एक तो इंजीनियरिंग का ट्रैक है, दूसरा पीएसयू जॉब्स के लिए या प्राइवेट जॉब्स के लिए जा सकते हैं। इंजीनियरिंग ट्रैक में उनको 3 साल और डिवोट करके फिर से वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करें और 4 से 7 लाख 6 लाख का पैकेज स्टार्ट करें इनिशियली, या वो पीएसयू में जाएं जिसमें कुछ रेलवेज है, ओएनजीसी है, डीआरडीओ है, गेल है, इन सब जगह आप लोगों की जगह है और ये अच्छा खासा पैकेज देते हैं आपको। प्राइवेट जॉब में मुझे विप्रो के बारे में पता है, टीसीएस, यूनिटेक भी आप लोगों को लेते हैं, और ये जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, बीएससी, बीबीए और आप जैसे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को, और वो उनको फर्दर ट्रेन करते हैं, क्योंकि मैं वहां ट्रेनर रहा हूं, और वो उनको खुद अपने यहाँ हायर करके 12 से 15,000 जॉब पे फिर क्या करते हैं, वो उनको 2 साल से 3 साल में उनको एक मास्टर्स डिग्री दिलाते हैं और वो इन हाउस ट्रेनिंग होती है। जब वो मास्टर्स डिग्री उनको मिल जाती है एमएस की, उसके बाद उनको उनका पैकेज वो रिवाइज कर देते हैं जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री के नॉर्म्स में आ जाता है। तो ये आपके कैरियर ट्रैक्स हैं।
क्या कोर्सेज हैं, ये आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको मेल कर सकते हो, या अभी जब ये सेशन ओवर हो रहा हो तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो, या मेल कैसी भी तरीके से आप हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे, हम रिप्लाई करेंगे आपको। ये हम लोगों की मेल आईडीज है, prashant.tgmc@gmail.com, rahulsharma26@gmail.com, vivek.tgmc@gmail.com. Now over to Sanjeev. प्रशांत एक सर, बट दीज आर अवर, ये हमारी पर्सनल मेल आईडीज हैं, सो हमने आपको शेयर की है। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो प्लीज अपने प्रोफेसर्स या इनको सीसी में जरूर रखो, एटलीस्ट हम, अदरवाइज हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। प्लीज अपने प्रोफेसर और उसको करो, और प्लीज सिर्फ क्वेश्चंस हो तो ही आप इस पे कुछ करो, ठीक है। और सेम इससे आप हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल भी देख सकते हो, ठीक है। आप इस मेल आईडी से हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल भी देख सकते हो, पर प्लीज क्वेश्चंस हो तो ही करना, अदरवाइज स्पैम हो जाएगा हमारी मेल आईडीज पे फिर हम, ठीक है। थैंक्स। हाँ थैंक्स। और ये हाइपेक्स टेक्नोलॉजी अपने बारे में बताना चाहेंगे ये लोग, और कौन कौन से ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, कैसे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इनके पास, और ये क्या है। अबाउट ओवर टू संजीव। हेलो, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर। हेलो, कैन यू हियर मी सर? Hello. Yes, go ahead. Yeah. Good afternoon, respected principal sir, Mr. Professor Subodh Kumar Mehta sir, Vice Principal Jairam Kumar sir, and TPO Aftab Anjum sir, and Coordinator Rajesh Ranjan sir, and Sivaram Krishna sir, and HAPAX team member and all the students. It is very special and pleasant moment to us to conduct this webinar with the HAPAX team. Is very delightful to connect with all of you. ओके, नाउ मैं आप लोगों को एज अ हैपेक्स में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हैपेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हमारा जो पूरा हमारा जो आईटी एजुकेशन में हमारा क्या काम है, और कैसे हम बच्चों को हेल्प करते हैं कि आप अपने फ्यूचर में आप कैसे अपने गोल को अचीव कर पाए। ओके, 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। यस, तो हेलो, तो मैं कहना चाहूंगा कि हैपेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हम लोग जो एस्टेब्लिश्ड हुए थे 2018 से हम लोग प्रॉपर्ली आईटी एजुकेशन में हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिसमें लखनऊ बेस्ड हमारी कंपनी है। इसमें हम लोग अप्रॉक्स 8 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3 यूनिवर्सिटीज जो लखनऊ बेस्ड है, वहाँ हम लोग ऑलरेडी वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ पे इनरोल होते हैं। उनको हम लोग मार्केट में कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे उनको मार्केट में कॉर्पोरेट लेवल पे उनको किस तरह से तैयार होना है। जैसे अभी हमारे जो सर लोग थे फैकल्टी में, जैसे प्रशांत सिंह सर, राहुल सर और विवेक सर, ये आपको एमआई, उसके बाद एआई, उसके बाद एआई और एमएल साइबर सिक्योरिटी पे इतना बढ़िया तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन किए। तो मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूँ कि कैसे, जैसे आप लोग डिप्लोमा, आप लोग पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है, और बेसिकली हम लोग जो वर्क करते हैं वो बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट होते हैं, एमसीए के स्टूडेंट होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब आप लोग को बताऊं कि डिप्लोमा के स्टूडेंट आप लोग जैसे अपने बिहार में समस्तीपुर हो गए, दरभंगा, शिवहर हो गए, पटना, यहाँ के जो स्टूडेंट है, आप लोग क्या करें कि कैसे आगे इन फ्यूचर आप लोग आफ्टर डिप्लोमा आप लोग कैसे जॉब को अचीव कर पाए एज अ डेवलपर, ओके, एज अ साइबर सिक्योरिटी में भी सर आपको बताएं। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिप्लोमा स्टूडेंट को भी हायरिंग करते हैं और अपॉर्चुनिटी भी बढ़िया देते हैं। उनको सैलरी पैकेज भी एज कम्पेयर टू बीटेक कम नहीं होता, बट ठीक होता है, ठीक है। बट ये इससे क्या होता है कि फर्स्टली यू हैव टू टेक द नॉलेज कि मार्केट में क्या चल रहा है, राइट। हमारी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो जी हाँ जी सर, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो जी सर, आवाज आ रही है यार। तो हैपेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हम लोग जो है मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ओके,
हमारे पास में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास ऑलमोस्ट जो हैपेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से हैदराबाद, बैंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, वेस्ट बहुत सारी कंपनी, अप्रॉक्स 20+ कंपनी से हमारा जो है टाई अप है। और उनको क्या रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे जीरो। हेलो, हमारी वॉइस आ रही है आप लोग को, शो हो रहा है स्क्रीन? हाँ सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है। आप लोग को हमारी मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ, आप लोग को शो हो रहा है? जी सर, जी शेयर हो रहा है। हम देख पा रहे हैं सर। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट अभी लास्ट ईयर हम लोग 100+ स्टूडेंट को प्लेसमेंट जो है हमारे सेंटर से हुआ है। और कंपनियां हम लोग से कांटेक्ट करने के बाद हम लोगों ने उनको जो कॉलेजेस हैं जो लखनऊ बेस्ड कॉलेज है, वहां पे हम लोगों ने प्लेसमेंट कराया है बहुत सारी कंपनी में, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे जीरो लैब है, जिया डिजिटल वेब वर्ल्ड है, ओके, जो गाजियाबाद में एस्टेब्लिश्ड है। एपेक्स टीजीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नोएडा में है। ये सारी जो कंपनी है जो बेसिकली लोग सॉफ्टवेयर के लिए लोग वर्क करते हैं, ठीक है। आईटी और सीएस के रिलेटेड है, ईसी वालों के लिए, ठीक है। इसी के जो अपने स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अब एज ए हैपेक्स आप लोग हमसे जुड़ करके अब हम लोग क्या करें कि आफ्टर जैसे आप लोग सितंबर अक्टूबर तक आप लोग का जो नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद कैसे आप लोग जॉब ले पाओ और अपने फ्यूचर को ऐसे ब्राइट या फिर सही वे में आप लोग कैसे आगे जा पाओ, ठीक है। तो इसके लिए अपने को ये करना है कि सबसे पहले आपको खुद को ये एनालाइज करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। जैसे डेवलपमेंट में जाना है, साइबर सिक्योरिटी, जैसे सर सारा चीज बताएं। तो जो भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड है कि अगर वो सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं या फिर लैंग्वेज कोर्स में, जैसे हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज कोर्सेज है, ठीक है। जावा, पाइथन, फिर सी है, सी शार्प है, C++ है, ठीक है। तो इसमें अगर आपके पास नॉलेज होता है तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इन फ्यूचर में आप साइबर सिक्योरिटी पे भी आप आगे जा सकते हैं। तो फर्स्टली यू हैव टू टेक द नॉलेज, ओके। देखिए अभी जो प्रेजेंट में क्या है कि आई अंडरस्टैंड कि अपने यहाँ पे समस्तीपुर और यहाँ का जो अपने यहाँ का जो भी करंट सिचुएशन है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों से फेस कर रहे हैं। जैसे नेटवर्क इश्यूज है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम जो है वो तो सॉर्ट आउट है ही, बट मे बी कभी कभार हो जाता है। ऐसा ही फ्लड का इश्यूज है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो बच्चे जिनको ये सब इन्वायरमेंट से, ये सब चीजों से फेस करते हुए अब उनको आगे कैसे सीखना है, तो वो अगर हैपेक्स से जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि प्राइवेट जॉब में तो आप लोग को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कितनी कंपनियां हैं, क्या है। इन फ्यूचर में हमारे पास में नवंबर दिसंबर तक में ऑलमोस्ट 4-5 कंपनी है जिनसे हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, जिनको हमें अपने कैंडिडेट, अपने प्लेसमेंट के रिगार्डिंग हमें बच्चे चाहिए, उनको हमें देने हैं, ठीक है। इनसे हमारा टाई अप है जो हैदराबाद, बैंगलोर बेस्ड है, ठीक है। तो इन सब में हम तब आपको ये अपॉर्चुनिटी आपके कॉलेज को, चाहे वो बिहार की कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, बीटेक कॉलेज हो, वहां दे पाएंगे, वहां आएंगे कि जब आपके पास वो नॉलेज हो। जैसे अगर जैसे प्रशांत सिंह सर अभी आपको बता रहे थे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, फिर क्रिप्टोग्राफी के बारे में, राहुल सर इतना बढ़िया आप लोग को AI और ML के बारे में बताया, विवेक सर साइबर सिक्योरिटी के बारे में इतना बढ़िया आप लोग को नॉलेज दिया। तो फर्स्टली आपको अगर उस फील्ड में जाना है तो आपको उस चीज के बारे में सीखना होगा। फर्स्टली आपको उसके बारे में सारा चीजें नॉलेज लेनी होगी कि वहां आपका क्या वर्क होगा, कैसे आपको अपने आप को वहां एस्टेब्लिश करना है। तो उसमें हैपेक्स आपको क्या हेल्प करेगा, हैपेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आप लोग को किस हिसाब से आपको कैसे आपको उसके लिए तैयार करेंगे, ठीक है। देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखना होगा। उसके लिए आप लोग को अगर आप आते हैं मोस्ट वेलकम, ठीक है। दूसरी चीज देखिए मैं एक चीज और आप लोग को बताना चाहूंगा। इसमें आप देख रहे होंगे स्लाइड में बहुत सारी चीजें हैं। प्राइवेट जॉब है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हार्डवेयर इंजीनियर है, नेटवर्किंग इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर टेस्टर, सारा सब जो है ये अपना फील्ड है जिसमें आप लोग एज अ पॉलिटेक्निक स्टूडेंट आप लोग जा सकते हैं इजिली। इसमें जाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है वो आपको बस चाहिए। अपॉर्चुनिटी बहुत है बट आपको उसके लिए तैयार होना होगा, ठीक है। सेकेंड जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ हैपेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में जो हम लोग कोर्सेज अभी फिलहाल पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए हम लोग जो फिलहाल अभी जो बेसिक में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे सी एंड डाटा स्ट्रक्चर हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो C++ पे, कोर जावा प्रोग्रामिंग है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
एंड ये सारा जो आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूंगा, मैं नॉर्मली बस आप लोग को बता दूं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर देखिए बहुत बेसिक, अगर आपके पास, अगर आप लोग थोड़ा अगर चाहते हैं कि मेहनत करके, ठीक है, थोड़ा नहीं, मैं एक्चुअली अगर आप लोग थोड़ा टाइम देंगे अपने दिनचर्या से थोड़ा हट करके, तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके लिए आप लोग को सीखना होगा कि क्या सीखे, जैसे सी है, जावा है, पाइथन है, उस पर अगर आपको कोई सा भी लैंग्वेज अगर प्रॉपर तरीके से उस पर अगर आपको कमांड होता है तो मार्केट में बहुत जॉब अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ओके, दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा कि देखिए हैपेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो बेसिक नॉलेज है, देखिए आप लोग अपने कोर्सेज में, मैं बताना चाहूंगा कि अपने स्टेट गवर्नमेंट का जितने भी जो अपना जो सिलेबस है, चाहे वो AICTE की आप बात कर लीजिए जो बीटेक वालों के लिए, या किसी भी UGC का, तो उन लोग का जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अब वो नहीं है, ये सब अब बहुत पुराने हो गए। मार्केट में क्या चल रहा है, अभी मार्केट में क्या चीज की नीड है, उसके लिए अगर आप तैयार होते हैं, उसको देख करके अगर तैयार होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तब आप कंफर्टेबल होते हैं कहीं जॉब के लिए। ओके, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक समर विंटर ट्रेनिंग कराते हैं, इसमें हम लोग 4 वीक का ट्रेनिंग होता है, ओनली 2300 और 3000 का हमारा ये इसका फीस है। ये सारी चीज आप लोग को अगर इंटरेस्टेड होंगे जो स्टूडेंट, वो हमारे वेबसाइट। हेलो संजीव सर, आपका प्रेजेंटेशन फिर से करिए, बच्चे स्क्रीन नहीं देख पा रहे। ओके, 1 सेकेंड, स्क्रीन आ रहा है? हेलो, आ रहा सर, आ रहा, दिख रहा सर, दिख रहा आ रहा है? बहुत छोटा स्क्रीन दिख 1 सेकेंड, एक्चुअली मैं खुद समस्तीपुर से हूँ और मैं भी यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशूज फेस कर रहा हूँ। प्रशांत सर, क्या आप रिप्रेजेंट कर देंगे पेजेस? प्रशांत सर, या आ रही है और स्क्रीन शो हो रहा है सबको? हेलो हेलो, प्रशांत सर ट्राई कर आ रही है। प्रशांत सर कर रहे हैं, किसी ने और ने ले लिया। प्रशांत सर ट्राई कर रहे हैं, वेट अ सेकंड। प्रशांत सर फिर ट्राई करिए। स्टूडेंट प्लीज, आप प्रेजेंटेशन अपने हाथ में मत लीजिए प्लीज। या थैंक यू प्रशांत सर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो नॉर्मल बेसिक नॉलेज अगर आपको लेना है साइबर सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो अपने पास सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए हो या कोई भी लैंग्वेज कोर्सेज हो या AI या ML के लिए भी चाहिए, तो आप लोग नॉर्मल जो हमारे पास में जो समर विंटर ट्रेनिंग है उस पे आप लोग आकर के, ऑनलाइन कोर्सेज है, आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं एंड उस पे आप लोग को जो कंटेंट से लेकर के PDF से लेकर के ऑनलाइन कोर्सेज आप लोग को प्रोवाइड की जाएंगी। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा अपने नॉर्थ रीजन में हैपेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एक सिंगल एक कंपनी है जो आपको 100% जॉब एसिक्योरिटी के साथ आपको प्रोग्राम, आपको ये जो हमारे पास में जो कोर्सेस है वो आपको ऑफर करती है, जिसमें क्या होता है कि हम फर्स्टली आपको, हमारा क्राइटेरिया होता है इसको आपको फुलफिल करना होता है, हम आपको टेस्ट करते हैं, फिर आपको जो पढ़ाने का पूरा जो हमारा प्रोसेस होता है वो अलग होता है। अलग इन द सेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा सिलेबस ही डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो आपके कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है और आपके अदर जब कहीं आप पढ़ रहे हैं उनका क्या है सिलेबस, उससे हमें उतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हमें क्या होता है कि जो हमसे जो टाइप कंपनियां हैं, जो कंपनी जिनके लिए हम आपको ट्रेंड करेंगे, जिनसे वो रिक्वायरमेंट है, तो उनका क्या वर्क है, वो किस पे वर्क करा रहे हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट हम उस पर आपको तैयार करेंगे, ठीक है। फिर वो कंपनी आकर के आपको हमारे सेंटर से या आपके कॉलेज से आपको प्लेस करती है, ठीक है। प्रशांत सर, इसमें देखिए मैं चीज और आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो HP सर्टिफिकेशन है, ये जो है बीटेक स्टूडेंट के लिए आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसे 2 मंथ का होता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन भी हमारे पास में है। HP सर्टिफिकेशन में देखिए बहुत सारी चीजें होती है, नॉट ओनली ये सर्टिफिकेशन है, इसमें प्रॉपर तरीके से आप लोग को सारा चीजें नॉलेज, बाकायदा नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। प्रशांत सर प्लीज नेक्स्ट सर। हेलो जी सर, रिप्रेजेंट कीजिए। या देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास में इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें हैं। मैं हेलो, स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर। वॉइस आ रही है?
Yes, sir. या प्रशांत सर, प्लीज नेक्स्ट सर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग का क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये होता है, जब आप ट्रेनिंग जितना करेंगे, जितना जिस चीज को आप प्रैक्टिकली आप करेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा आप अपने आप को रिप्रेजेंट कहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ जो अभी पीछे सर एक स्लाइड था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके कोडिंग पे, आपके कम्युनिकेशन स्किल पे, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, एवरीथिंग पे वर्क करेंगे। ठीक है, प्रशांत सर प्लीज नेक्स्ट सर। हेलो, या प्रशांत सर प्लीज नेक्स्ट सर। देखिए, हमारे ये जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, जिसमें राहुल सर और प्रशांत सिंह सर और विवेक सर हैं, इन लोग के बारे में आपको ब्रीफली आप लोग उनको अभी सुने हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब अपने फील्ड में है। और प्रशांत सिंह सर और राहुल सर ISC बेंगलोर से हैं, और विवेक सर के बारे में आप लोग को पता ही है। तो मैं लास्ट में जाना चाहूंगा, प्रशांत सर प्लीज नेक्स्ट सर। देखिए, जो हमारे ये हैपेक्स टीम है, हैपेक्स टीम में हमारे मंटू सिंह सर है जो को फाउंडर है ये। उसके बाद जो हमारे पूरे हैपेक्स टीम है, इसको आप लोग देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पे आकर के सारी चीजें। नेक्स्ट सर। ओके, वैसे स्टूडेंट जिनको ये सारे वेबिनार से जिनको जो मतलब उनको अगर चाहिए कि वो उनको आगे फ्यूचर में कुछ करना है, इंटरेस्टेड है, तो वो हमारे हाइपेक्स हमारे पास हमारे वेबसाइट पे आकर के, या जो अभी जो एड्रेस हाइपेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हमारा जो ऑफिस है, जो हमारा हेड ऑफिस है लखनऊ में है, वहां आप देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल से लेकर के एवरीथिंग, मेल एंड एवरीथिंग आप लोग को शो हो रहा होगा, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने कॉलेज के जो आपके कोऑर्डिनेटर सर हैं CS के, जो लेक्चरर है राजेश रंजन सर, आप उनसे भी कांटेक्ट करके आप लोग हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं आपको फ्यूचर जॉब के लिए। देखिए, लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, पूरा जो वेबिनार है, जो हमारे फैकल्टी मेंबर से लेके प्रशांत सिंह सर, राहुल सर, विवेक सर, जो सारा चीजें जो सारा चीज कंप्लीट हुआ, और मैं इसमें बस इतना ही कहना चाहूंगा, द वेबिनार कंडक्ट वेरी सक्सेसफुली एंड दिस कुड बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल सुबोध कुमार मेहता सर। Okay, and we are looking forward to put this kind of webinar in the future. And after ये जो अपना जो लॉकडाउन का जो इश्यूज है ना, ये अगर सब जैसे कंप्लीट हो जाता है, कॉलेज जब ओपन हो जाएगा, तो हम लोग एक चीज और ये करना चाहेंगे कि मैकेनिकल पे, इलेक्ट्रिकल पे भी हम लोग वेबिनार और सेमिनार भी करेंगे। ओके, और इन फ्यूचर में मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी कॉलेजेस हैं अपने यहाँ पे, जैसे समस्तीपुर कॉलेज हो गए, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज, और दरभंगा में भी है, और तो यहाँ पे हम लोग एक प्लेसमेंट के लिए भी हम लोग फ्यूचर में नवंबर दिसंबर में आएंगे। जो कंपनी जिनको रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ITCS की कंपनी हो और मैकेनिकल बेस्ड भी कंपनी है, जो मैं कंपनी का नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, रैनस्टैंड एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये बहुत ही बड़ी है, मैन पावर सप्लाइंग कंपनी है, जितने PSUs हैं उसमें। तो आ करके हम लोग यहाँ ये करेंगे कि जो बच्चे ट्रेंड होंगे, जो हमें रिक्वायरमेंट है, हम उनको देखेंगे और उनको ट्रेनिंग और उनको बकायदा ट्रेनिंग के साथ हम उनको प्लेसमेंट कराएंगे। ठीक है, एंड लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि जो पूरा जो वेबिनार और सारा चीज जो अभी तक जो हम लोगों ने बच्चे को कम्युनिकेट किए, कोऑर्डिनेट किए सारा चीज, मैं उसके लिए राजेश रंजन सर और हमारे जो प्रिंसिपल सर है फर्स्टली, उनको मैं थैंक कहना चाहूंगा, ईको सर को थैंक करना चाहूंगा, एंड पूरे हैपेक्स टीम को थैंक्स करना चाहूंगा। अब मैं अपने वर्ड यहीं पे मैं रोकना चाहूंगा, एंड थैंक्स फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू संजीव, थैंक यू। जितना कुछ कंडक्ट हुआ है, उसके बाद बच्चों को अपनी तरफ से ये टेक ओवर कर सकते हैं कि हम जितने भी लोग हैं इंडस्ट्री से, वो सारे लोग प्लेसमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। वहां पे हम लोगों को क्या दिखता है कि कहीं ना कहीं एक गैप है जिसको भरने की जरूरत है। तो जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है
अगर वो बच्चों तक जाएगा और बच्चे उससे बेनिफिट उठाएंगे तो वो उनके फ्यूचर के लिए बेटर होगा। तो आई एम सेइंग ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। और अगर वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो समर ट्रेनिंग हो या फुल टाइम कोर्स का प्रोग्राम हो, जितना भी असिस्टेंस हम लोग दे सकते हैं वो देंगे, किसी भी टाइम किसी भी वक्त, जो भी डिजिटली हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी कैलेमिटी है हमारे साथ, चाहे वो कोविड हो या आपका फ्लड हो, इन सब से निकलने के लिए अगर हम लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी जगह प्लेस होंगे, तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी इंडिविजुअल्स की। और सर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि सर जी, ये हैपेक्स के पास वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड हम लोग मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी हम लोग फ्यूचर में बहुत ही मतलब इसको देख रहे हैं कि हम लोग आकर के अपने बिहार में जितने बच्चे उनको हम लोग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाए। और करंट में सर जो CS और IT के लिए जो है हमारे पास में नवंबर दिसंबर में हायरिंग है, तो हम लोग सर आना चाहेंगे। और अगर प्रिंसिपल सर जो हमारे सुबोध कुमार मेहता सर अगर वो परमिशन देंगे तो डेफिनेटली समस्तीपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज जो अपने KNS गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है, वहां हम लोग आके वहां से बच्चों को सब पिक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो ओवर टू राजेश, मिस्टर राजेश। थैंक यू सर। आप कंटिन्यू। हेलो। या हाँ, थैंक यू सर। यस यस, गो अहेड। सर कुछ स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछना चाहते हैं। डेफिनेटली पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड वन बाय वन। हाँ, कोई स्टूडेंट अपना कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर स्टूडेंट चाहे तो चैट पे लिख दें और सर उसको रीड करके स्टूडेंट का नाम बता के हमें बोल सकते हैं। तो अगर कोई बोल नहीं पा रहा है तो वो चैट पे भी लिख सकता है, तो हम उसका रिप्लाई कर देंगे। निशा कुमारी ने फीडबैक लिंक मांगा है, तो दैट हाइपेक्स विल प्रोवाइड। आप लोग जो भी वो लिंक है, फीडबैक वाला लिंक, वो आप प्रोवाइड करो बच्चों को। ओके सर। किसी की कोई क्वेरी हो पूछ सकता है, वो इसमें लिख सकता है। We really appreciate all. एक चीज मैं कहूंगा, हमने जो भी टॉपिक कवर किए हैं, those topics are not for 20 minutes or 30 minutes, मतलब 20 या 30 मिनट में फिनिश नहीं किए जा सकते हैं। उनके लिए आवर्स लगते हैं, 4-5 आवर्स एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो अगर उनमें से कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप अभी पूछ सकते हो या हमें मेल कर सकते हो। आप हाइपेक्स को मेल कर सकते हो। और मुस्कान, गो अहेड। What is the work of cyber security, sir? Sorry, once again, what is called cyber security? What is about? What is the what is the work of cyber security? What is the work of cyber security? Vivek. Yeah. Okay, cyber security. What is the real use of cyber security in the industry? Okay, आप अपने सिस्टम पे, पीसी पे या कहीं भी आपने देखा होगा फायरवॉल सुना है या एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो? Yes, sir. वैसे हाँ, तो एंटीवायरस क्या करता है? आपको बाहर से कोई गलत सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम से डेटा चोरी ना कर सके, या आपका सिस्टम के रिसोर्स, जैसे किसी मेरा प्रोग्राम है, मेरे को कुछ डाउनलोड करना है, मैं क्या करूं आपके, या कुछ टेस्ट करना है, मुझे कई सिस्टम चाहिए, तो मैं आपके सिस्टम को यूज करने लगूं चुपचाप, आपको पता भी ना चले, या आपका पर्सनल डेटा हो उसके अंदर, उसको मैं चोरी कर सकूं। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, इनको मॉनिटर करना, उसको रोकना, उसके लिए आपको टीच करना, ये सारा वर्क जो है साइबर सिक्योरिटी में आता है। अपने पास भी इंडियन गवर्नमेंट के भी साइबर सिक्योरिटी लॉज हैं, डिपार्टमेंट तक है साइबर लॉ करके है।
ठीक है, जहाँ पे इन सब चीज मतलब डाटा चोरी करना ये तो मालवाड़ी का काम है ना। क्या किसका? MALWARE जो वायरस था। हाँ, तो साइबर सिक्योरिटी, मालवेयर इज साइबर, ये तो डाटा को चोरी करना मालवेयर का काम था, तो फिर ये साइबर सिक्योरिटी का वर्क क्या होगा सर? साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है मालवेयर। मालवेयर सॉफ्टवेयर को कहते हैं, ना कि वो कोई डिपार्टमेंट है। इट इज नॉट साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योर आप किससे करते हो? मालवेयर से। आप मालवेयर से अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो। मालवेयर जो भी गलत सॉफ्टवेयर हैं उनको बोलते हैं, जो आपका डेटा चोरी करते हैं। और सिर्फ डेटा चोरी करना उनका काम नहीं होता है, वो आपके लेट एज्यूम कि मुझे एक सॉफ्टवेयर है, टेस्ट करना है कि यार इसको मेरे पास जो पीसी है, आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी सुना है? किसी ने? क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? वो कुछ कोड है, बिटकॉइंस या क्रिप्टो, वो कुछ कोड है, वो रन कराता है और रन कराने से वो कुछ फॉर्मूले सॉल्व कर रहा होता है। एक सिंपल, अगर मैं सिंपल को, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन होता है जो कंटिन्यूस उसे करना होता है। मैं अपने पीसी पे, अकेले एक पीसी पे वो करूंगा तो मेरे को मे बी पर डे $0.1 मिले। बट अगर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ पीसीज पे अगर मैं ये काम करूं तो वो मेरा $100 पर डे का हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अपना एक मालवेयर यानी एक सॉफ्टवेयर लिखूंगा और वो मैं चुपके से डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताया था, टोर्जन्स हैं या किसी आपके सिस्टम में इंसर्ट कर दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और वो प्रोग्राम आपके पीसी में चुपचाप रन कर रहा है। यानी वो मेरे लिए 0.01, आप समझ लो $0.01 मेरे लिए अर्न कर रहा है पर डे। अगर आपके एक पीसी से वो मुझे $0.01 अर्न कर रहा है तो 1000 पीसीज पे डाल दूं तो वो मेरे लिए कितना हो गया? एटलीस्ट $100 हो गया। $100 इन इंडियन करेंसी में 7000। तो मालवेयर जो मैंने बताया था वो सॉफ्टवेयर को कहते हैं, ना कि वो साइबर सिक्योरिटी का। मालवेयर सॉफ्टवेयर है, उन सब से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक डिपार्टमेंट है या एक स्टीम है। ठीक है, स्टीम है, जैसे आपका CS स्टीम है वैसे साइबर सिक्योरिटी स्टीम है। उसके अंदर मालवेयर भी आते हैं। उसके अंदर आपके मालवेयर के मैंने आपको डिफरेंट टाइप बताए हैं, टॉर्जन हो गया या बैकडोर हो गया या डिनायल ऑफ सर्विसेज हो गई। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन सबको ही हम मालवेयर कहते हैं। और इन सब से बचने के लिए ही साइबर सिक्योरिटी की स्टीम बनी है। उसे क्या क्या करना चाहिए, तो काउंटर मेजर मैंने आपको बताया था, जिसमें से डेवलपर को भी कोड लिखते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह से कोड अपना ना छोड़ दे कि उसमें कोई भी एक्सेस कर सकता हो। ठीक है, ओके सर। साइबर सिक्योरिटी एक स्टीम को बोलते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर साइंस एक स्टीम है, कंप्यूटर साइंस में बहुत कुछ आते हैं सब्जेक्ट, वैसे साइबर सिक्योरिटी एक स्टीम है। इंटरनेट सिक्योरिटी, किस तरह से इंटरनेट पे होने वाले जो भी अटैक हैं या जो भी फ्रॉड है उन्हें कैसे रोका जा सके या कैसे लोगों को एजुकेट किया जा सके, वो साइबर सिक्योरिटी में आता है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। So I hope most of the questions be solved, and if there is any question, they will send us right through a mail, and we are proceeding towards the closing this meeting. So I'm thanking to all of you for all the participants on behalf of Hypex Technology. Vivek, you want to add anything? Rahul? हेलो, मैं आप लोग को एक चीज बोलूंगा। कोविड सिचुएशन में करंट CS और IT का मार्केट, मैं खुद इंटरव्यूज लेता हूँ। सो मैं आप लोग को एक चीज बोलूंगा, जो इंटरव्यूअर्स फ्रेशर्स आते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा इशू है कि वो लोग बेसिक्स पे अपने ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग हैं कहेंगे मुझे एंड्रॉइड ऐप बनाना है, मुझे आगे की चीजें करनी है, मुझे AI काम करना है, मुझे ML काम करना है, बट जो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक लर्निंग्स हैं, जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, याद रखना आपके बेसिक्स पे आपका इंटरव्यू होता है। आपको एडवांस कितना आता है प्लस नहीं आता है, तो वो सिर्फ ये देखते हैं आपकी ग्रैबिंग पावर कितनी है, आप कितनी जल्दी सीख सकते हो। बट अगर आपका बेसिक्स कमजोर है, अगर आप कहोगे मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया था, मैंने ये किया था, डजंट मैटर। अगर आप अपना बेसिक्स नहीं वहां पे शो ऑफ कर सकते तो प्लीज अपने बेसिक्स पे
जरूर ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको हमसे पढ़ना है, आप जो भी करो, जहां भी पढ़ो या जैसे भी पढ़ो, आप अपने बेसिक्स को हमेशा मजबूत रखिए, खासकर कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए, क्योंकि प्रोग्राम्स, लॉजिक्स बहुत मैटर करते हैं। थैंक्स। हाँ शिवा सर। थैंक यू एवरीवन। आप थैंक्स सर, थैंक्स प्रशांत सर, राहुल सर एंड विवेक सर। आपके द्वारा जो दिया गया इंफॉर्मेशन था वो हमारे छात्रों के लिए काफी अच्छा और लाभान्वित करने वाला था, और आगे चल के इनको जॉब में भी इसका फायदा महसूस होगा। तो मैं शिवाराम कृष्णा, कामेश्वर नारायण सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक समस्तीपुर की तरफ से आप सभी पार्टिसिपेंट एज वेल एज स्पीकर्स को तहे दिल धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही साथ मैं राजेश रंजन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना अच्छा वेबिनार आयोजित करवाया। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक्स। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ। सब लोग अब चैट बॉक्स को लीव करके जा सकते हैं। छात्रगण कृपया ध्यान दें, आप लोग चैट बॉक्स को लीव करें। like comment share subscribe and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.